अध्याय 1106 से 1110। यह महीना ब्लैक सोल संप्रदाय के लिए एक दुःस्वप्न की कभी न खत्म होने वाली खाई जैसा था। केवल एक महीने के भीतर अनगिनत संख्या में उनके सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली शिष्यों की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने आधे बुजुर्गों को खो दिया और लेई कियानफेंग के सभी बेटे जहर से मारे गए। समूचे पंथ के चेहरे पर मानो राख फैल गई हो। वे अपनी सारी गरिमा और प्रतिष्ठा खो चुके थे, उनका भविष्य अंधकार में दिख रहा था। कल रात ही लेई कियानफेंग के भीतर जहर पूरी तरह से फूट गया था। पूरे संप्रदाय पर ताला लगा हुआ था और माहौल बेहद तनावपूर्ण था। ये सब एक व्यक्ति की बदौलत था। लिंग यून नाम एक शैतान के निशान की तरह था, जो आत्मा संप्रदाय के प्रत्येक सदस्य की चेतना में गहराई से अंकित था। जब भी वे इस नाम के बारे में सोचते, वे कांपने से खुद को नहीं रोक पाते। Today, the weather was absolutely lovely. Yu Che slowly opened his eyes. Ever since he had started engaging the soul sect in that back and forth, he had neglected his regular training. After forcing Lei Qianfeng to his death, he should soon leave the Dakya realm to go look for the divine nine-star Buddha jade and the immortal Emperor grass. He would have to use all his might to train as well. The date of the Profound God convention was getting closer and closer. He stood up and looked in the direction of the soul sect. His lips curled into a cold smile. It was time to mess with Lei Qianfeng once more. Lei Qianfeng's profound strength had suddenly erupted the night before, and he had lost control of himself, shouting and screaming before collapsing. This was the result of the poison acting up and was naturally what Yu Che wanted to see the most. This was all within his calculations. This wasn't a matter of Lei Qianfeng's tolerance being weak. It was thanks to the constant strings of defeat, the insults, his son's deaths, he himself being poisoned, and finally the news of the entire matter being broadcasted to the public, let alone Lei Qianfeng. Even a living Buddha would die from the anger. Although Yu Che's means leaned on the side of despicable, he was but one man. His profound strength was in the divine soul realm. Against the huge soul sect, he could only vent his anger through such means. Even though his means was such, he was the only one who could do it. It was right to say that Lei Qianfeng's state was exacerbated thoroughly by him. Yu Che rose into the air and sped in the direction of the soul sect. After last night, the ancient horned dragon's poison in Lei Qianfeng had flared up to a large degree. In about 2 or 3 more days, if Lei Qianfeng wasn't able to completely focus on suppressing the poison would eventually run its course and he would die without a doubt. After entering the Black Soul Mountain range, Yu Che started to descend. He passed through the eastern area of the range before slowing down. Today's mountain range wasn't as quiet as before. All sorts of profound beast roars sounded from every corner of the range as the occasional hawk flew in the sky. Yu Che's brows both knitted. Were there no soul sect disciples guarding the mountain today? Unless yesterday's poison outbreak, was Lei Qianfeng already going to die? That can't be it, can it? Without letting down his guard, Yu Che continued onward. En route, he didn't encounter any presence or auras of soul sect disciples. He looked in the direction of the soul sect. His eyebrows twitched violently, following his line of sight. He came to halt. This sort of feeling. Just as he was looking in the direction of the soul sect, he felt a strong sense of danger strike him. It disappeared as soon as he stopped. A mysterious sense of unease started rising within him. Yu Che frowned. Every time he neared the soul sect, he'd always be surrounded by danger. If he was just a little bit careless, he would have died 9 times over, but this time, the feeling he had was even stronger than previously. It was as if the opponent was invincible and unfathomable. If he continued to get close, it felt as if he would face an invincible tribulation. Yu Che didn't dare second guess the warning that was coming from his soul. He stood still, both eyes fixed in the direction of the soul sect, not moving for quite a while. Lei Qianfeng had already been pushed to the brink last night. With just a little more of a nudge, he'd definitely fall into death's abyss. However, if he was given the chance for a breather, all of Yu Che's previous efforts would have been wasted. Furthermore, it was impossible for him to have another chance at this. Just as he was feeling suspicious, he suddenly felt a burst of profound energy. He held up his sound transmission jade and heard Ji Ruin's panicked voice on the other end. Sir Ling Yu, where are you now? Do not go near the soul sect at all costs. An incredible big shot arrived at the soul sect last night. Yu Che. Although we have yet to confirm who it is, based on the movements of the soul sect, it's highly possible that it's someone from the divine martial realm.
Sir Ling, you must not go near the soul sect. It'd be best if you change your features and stay as far away as possible, or you could come to the Black Feather Merchant Guild for the time being. The soul sect has never suspected us having any relations. This place should be safe. We will get to investigating who that person that has arrived is. Uddharan Chinha. Uddharan Chinha. Ling Yun's face grew solemn. After a short period of pondering, he retreated a few steps, then turned around and left. That sudden sense of danger he felt was indeed not without reason. The divine martial realm, these were people from an upper star realm, existences he could definitely not afford to offend. Yu Che left the Black Soul Mountain range. Shortly thereafter he arrived in Dakya city and entered the Black Feather Merchant Guild. Sir Ling Yu. Ling Yu had just arrived. A girl in a purple silk dress hurriedly rushed over. She was charming and elegant, her manner and posture were beautiful, and the eyes beneath her shapely brows radiated a gentle brightness. Her long hair was like the clouds, worn in a light purple band. She moved gracefully, like that of nobility. It was Ji Ruyan. Although they constantly spoke, Yu Che had not met her during this period. Ji Ruyan wasn't alone. By her side was a familiar middle-aged man. It was Mr. Ji, whom he had met when he first entered the Black Feather Merchant Guild. He was also Ji Ruyan's father, the one who held the highest position in the Black Feather Merchant Guild. His demeanor was different from the initial cold impression Yu Che had of him. When he saw Yu Che, Mr. Ji walked steadily towards him step by step, his face unable to hide his excitement. He then respectfully knelt down. Sir Ling Yu, I am unable to repay you for all that you've done for the Black Feather Merchant Guild. Please accept my humble greetings. Yu Che's expression didn't change. Mr. Ji, you don't have to do this. I dealt with the soul sect as I have a personal vendetta against them. It has nothing to do with the Black Feather Merchant Guild. Instead, it could be said that Miss Ruyan has helped me even more. As of now, I've used every means available to me. If the soul sect still doesn't crumble, your guild will still be under its thumb in the future. No, Mr. Ji shook his head. The Black Feather is a large family-run business, yet it fell into the claws of the soul sect. All these years, I've never slept soundly, my heart was in constant turmoil, yet I was absolutely helpless. Leaving everything else aside, just what you've done has helped us vent. This is enough to last us a lifetime. Not only that, Ji Ruyan slightly smiled. The soul sect has lost every bit of its reputation. After losing all of his sons, Lei Qianfeng no longer has an heir. After Lei Qianfeng, the soul sect will no longer have relations to the divine martial realm where marital relations are concerned. There will be chaos within the sect once it comes to a fight for power. Perhaps that's the time when the Black Feather Merchant Guild will finally be able to escape its cage. All of this is thanks to Sir Ling Yu. Mr. Ji kept his eyes on Yu Che. He could not help but sigh. Sir Ling Yu, you all alone, yet you've managed to bring Soul Sect, a huge powerhouse, to its knees. If I didn't see it with my own eyes and hear it with my own ears, perhaps even in my dreams, I wouldn't dare to believe it. Ruyan said that you were born in the lower realms, but you're the most spectacular man of the young generation that I've ever seen. No one can compare to you, Sir Ling Yu. Yu Che chuckled. Mr. Ji, you are exaggerating. Sir Ling Yu, news about the soul sect has arrived. Ji Ruyan's face turned serious. It's indeed people from the divine martial realm. They should have arrived at the soul sect last night. If our sources are not wrong, there's 2 of them. Just 2 of them. Yu Che's brows twitched. Sir Ling Yu, you must not take this lightly. These 2 aren't like the usual messengers that come from the divine martial realm. It's actually Wu Gaik. Wu Gaik. Yu Che raised his brows. 1 month ago Ji Ruyan had mentioned this name. Wu Gaik was the son of the great realm king of the divine martial realm. He was the son of the great realm king Wu Sanzun and the sister of Lei Qianfeng, Lei Qianyu. He was initially supposed to be of ordinary status as he was born of a lowly concubine. However, his growth was exponential and his talent shocking. His position grew by leaps and bounds in the divine martial realm. He was Lei Qianfeng's nephew. At the same time, he was the biggest backer of the Black Soul Divine Sect. The son of a great realm king of an upper star realm, just this status was enough to scare anyone in the entire Dakya realm into submission. Wu Gaik's talent is monstrous. After displaying his talent, he received the personal acknowledgement and guidance of Wu Sanzun. He was only 30 years of age, but he was shockingly in the divine spirit realm. In this profound god convention, he will surely blow everyone away.
Furthermore, being the prince of the divine martial realm, it is certain that his bodyguard will be a frightening existence, and is most likely a divine sovereign. Uddharan Chinha. Uddharan Chinha. Yu Che was speechless for quite a while. The divine tribulation realm was his greatest goal right now, but this Wu Gaik, who was barely 10 years older than him, had already stepped into the divine spirit realm. This was the most frightening thing about the upper star realms. There was only one other person accompanying him, and if it was a divine sovereign realm expert who was on the same level as Mu Bingyun, trying to get close to the soul sect once more would be plain suicide. If there was a divine sovereign expert helping, the poison in Lei Qianfeng's body would most likely be detoxified within days. Sir Ling Yu, you must not go anywhere near the soul sect. You can stay here during this period of time. Once the two of them leave and we get wind of it, we will make arrangements to send you to the heavenly mystery realm. Ji Ruyan continued with the utmost of sincerity. You're the benefactor of our Black Feather Merchant Guild. We will definitely not harm you. Should you have any request to make of us, we'll make the utmost effort to fulfill it. Uddharan Chinha. Uddharan Chinha. Yu Che took in a deep breath. Thinking back to how he had to come up with so many machinations, taking big risks every step of the way just to poison Lei Qianfeng, and now all his efforts would go to waste, he felt extremely unreconciled right now. Alright, Yu Che let out a deep breath, I'll have to trouble all of you. Right now I'll need a quiet spot to cultivate. ब्लैक सोल डिवाइन संप्रदाय में माहौल बहुत भारी था। संप्रदाय में सब शांत था। शिष्य अपने रक्षक पदों पर थे। हॉल के मालिक और बुजुर्ग सभी सामने झुके हुए थे, उनके भाव भय से भरे हुए थे। सभी शाखा संप्रदाय के स्वामी भी आ गए थे, रात भर दौड़ने के बाद अपने स्थान पर खड़े थे। वे स्पष्ट रूप से अपने अपने संप्रदाय की दीवारों के भीतर थे, लेकिन शिष्यों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को सांस लेना मुश्किल हो गया और किसी ने भी एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। उनके डरे हुए भावों से ऐसा लग रहा था मानो वे अपनी दुनिया में किसी देवता का स्वागत कर रहे हों। लेई qianfeng मुख्य हॉल में बैठे थे, उनके शरीर में गहन ऊर्जा पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी। उसके पीछे एक काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी था जिसकी अभिव्यक्ति बर्फीली थी। उसकी हथेली लेई qianfeng की पीठ पर मजबूती से दबी हुई थी। ये नजारा कुछ घंटों से चल रहा था। अंत में लेई qianfeng ने अपनी आंखें खोली और वॉरग। उसने एक बड़ा कौर खून उगल दिया। जैसे ही खून बाहर की ओर उछला और नीचे गिरा, उसने अपने नीचे के गहरे पत्थरों को पिघला दिया। लेई qianfeng गहरी सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही उसके मुंह से खून निकला, उसका रंग बहुत अच्छा हो गया। वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को गहरा प्रणाम किया और श्रद्धापूर्वक उसे धन्यवाद दिया। मैं लेई qianfeng सर वू की जीवन बचाने वाली कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। जिस व्यक्ति को लेई qianfeng ने सम्मानपूर्वक सर वू कहकर स्वागत किया, उसने उसकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने भौहें चढ़ा ली और कहा, कितना शक्तिशाली जहर है। सौभाग्य से राशि बहुत कम थी और समयावधि भी कम थी, यदि नहीं तो महान आकाश देवता भी आपको बचाने में सक्षम नहीं होंगे। तो आप कह रहे हैं अब सब ठीक है। एक सौम्य और सुकून भरी आवाज धीरे धीरे गुजरी। खिड़की पर एक युवक अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे हुए था और उसकी पीठ उनकी ओर थी। वह सफेद पोशाक में था जिस पर नीले रंग के पैटर्न बने हुए थे। उसके बाल उसकी कमर तक पहुंच गए थे। हालांकि कोई उसका चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन उसके चारों ओर बड़प्पन का माहौल था, जो कुछ हद तक केवल उसकी छाया को देखने का साहस करता था, सीधे उसे देखने का नहीं। काले लिबास पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पलटकर कहा, युवा मास्टर, हालांकि संप्रदाय मास्टर लेई के भीतर का जहर बहुत शक्तिशाली है। हालांकि वह अब ठीक लग रहा है, लेकिन उसे पूरी तरह से विषमुक्त करने के लिए हमें कुछ और दिनों की आवश्यकता होगी। ओह, युवक की आवाज से आश्चर्य की झलक दिख रही थी। वह सुंदर विशेषताओं को प्रकट करते हुए सुस्ती से घूमा। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे जेड से उकेरा गया हो। अंकल, लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। अगर हम कुछ दिन बाद आते, तो मुझे डर है कि मैं आपकी लाश से मिलने के लिए यहाँ होता। हालांकि वह लेई qianfeng को चाचा कहते थे, लेकिन उनका लहजा और आचरण बिल्कुल इसके विपरीत था कि कोई किसी वरिष्ठ के साथ कैसा व्यवहार करेगा, पूरी तरह से सम्मान से रहित। उसकी दृष्टि ऐसी थी मानो वह किसी तुच्छ और दयनीय प्राणी को देख रहा हो। जहां तक लेई qianfeng की बात है, उसके अंदर जरा भी गुस्सा नहीं था। उसने जल्दी से जवाब दिया, हाँ, अगर आप नहीं आए, तो मुझे डर है कि मेरी यह जिंदगी चली जाएगी। ये सिर्फ मो के बारे में अफसोस की बात है, और बाकी
अपने 7 बेटों के बारे में सोचकर, जो भयानक रूप से मर गए थे, लेई कियानफेग का पूरा शरीर अकड़ गया। उसने दोनों मुट्ठियां इतनी कसकर भींच ली कि उनका हिलना बंद नहीं हुआ। मौसी ने मुझे कल रात ही सारी बात बता दी है। वो गुइके ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मैंने चाची से सुना है कि यह सब लिंग युन नामक किसी व्यक्ति ने किया था। उसने न केवल आपके सभी बेटों को जहर दिया, बल्कि वह आपके 1 लाख से अधिक सर्वश्रेष्ठ शिष्यों को भी मारने में कामयाब रहा, जिनमें 4 बुजुर्ग भी शामिल थे। यहाँ तक कि उसने आपकी जान तक ले ली, फिर भी आप में से कोई भी उसकी पूंछ तक नहीं पकड़ सका। जैसे ही वह बोला, उसकी नजर जियो किंगटोग की ओर गई, जो किनारे पर था। जब वह लेई कियानफेग को देख रहा था, उसकी तुलना में जियो किंगटोग पर उसकी नजर बहुत अधिक सौम्य थी। यू चे के संबंध में लेई कियानफेग ने सभी प्रकार की चरम भावनाओं को महसूस किया। दर्द, गुस्सा, नफरत, अपमान, ये सब एक गहरे भय में बदल गया था, जिससे वह कांपने लगा था। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश हो गई। लिंग युन, वह तो बस शैतान है। शैतान, वो गुइके ने उपहास करते हुए कहा। अरे ओह अंकल, अगर चाची ने खुद मुझे नहीं बताया होता, तो मैं कभी भी इसके एक शब्द पर विश्वास नहीं करता। हालांकि आपके बारे में मेरी राय यह है कि आप आंटी के लायक नहीं हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने बेकार व्यक्ति होंगे। आपका भतीजा होने के नाते मुझे लगता है कि मैंने अपना सारा चेहरा खो दिया है। लेई कियानफेंग हैरान दिखे। उसने बहस करने की हिम्मत नहीं की और थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर नीचे कर लिया। आप सही कह रहे हैं, मैं वास्तव में बेकार हूँ। लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि लिंग युन के शरीर को कीमा बनाया जाए। 1000 टुकड़े कर दूं और मैं उसकी हड्डियों को धूल में मिला दूंगा। क्या ऐसा है? वो गुइके धीरे धीरे करीब आ गया। उसकी नजर अचानक और अधिक गंभीर हो गई। इससे पहले कि आप लिंग युन की बात कहें, बेहतर होगा कि आप पहले अपना ख्याल रखें। रॉयल वुड स्पिरिट वाले मामले का क्या हुआ? इस बात से बेहद नाराज हैं शाही पिता। बेहतर होगा कि आप उचित हिसाब दें, वरना परिणाम ऐसे नहीं होंगे जिन्हें आप आसानी से सहन कर सके। अंततः जो आना था वह आ गया। लेई कियानफेग का पूरा शरीर कांप गया, क्योंकि उसने जल्दी से उत्तर दिया, रॉयल वुड स्पिरिट के बारे में बात झूठी नहीं है। जब हम उस रॉयल वुड स्पिरिट को पकड़ने में कामयाब रहे, तो हम तुरंत उसे आपके शाही पिता को उपहार में देने वाले थे। हालांकि लापरवाही के एक क्षण के कारण लिंग युन ने रॉयल वुड स्पिरिट को छीन लिया। लिंग युन को कैसे पता चला कि यह एक रॉयल वुड स्पिरिट है? वो गुइके ने तुरंत पूछा। नहीं, लिंग युन ने इसे इसलिए नहीं छीना क्योंकि यह एक रॉयल वुड स्पिरिट थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह रॉयल वुड स्पिरिट डाकिया शहर के बाहर एक समुदाय में छिपी हुई थी। वह उन लकड़ी की आत्माओं को पहले से जानता था, इसीलिए जब हमने उस पर कब्जा कर लिया तो उसने उसे हमसे छीन लिया। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा विरोध करने के लिए पर्याप्त साहस वाला कोई व्यक्ति होगा, और इसलिए हमने लापरवाही के एक क्षण में रॉयल वुड स्पिरिट को खो दिया। उसके बाद अंततः हमने लकड़ी की आत्माओं के उस समुदाय को ढूंढ लिया और उन सभी का नरसंहार किया, लेकिन हमें वह रॉयल लकड़ी की आत्मा कभी नहीं मिली। लिंग युन द्वारा हमसे प्रतिशोध लेने का कारण यही कारण था। क्या ऐसा है? वो गुइके ठंडे स्वर में हंसा, मानो उसे लेई कियानफेग की बात पर विश्वास न हो। गुइके, जियो किंगटोग ने धीरे से कहा, अंकल आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। अगर हमने उस रॉयल वुड स्पिरिट को नहीं पकड़ा होता, तो मैंने तुरंत आपकी माँ को नहीं बताया होता। ये सिर्फ इतना है कि हमने कभी नहीं सोचा होगा। वो गुइके की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई। उसने अपना सिर हिलाया। चूंकि ये चाची के शब्द हैं, तो गुइके आपकी बात पर विश्वास करेगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें लेई कियानफेग की ओर घुमाई, तो उसकी नजर एक बार फिर कठोर हो गई। हालांकि शाही पिता इस पर विश्वास करेंगे या नहीं, ये तय करना मेरे ऊपर नहीं है। रॉयल वुड स्पिरिट के मुद्दे को छोड़ दे तो इन कुछ वर्षों में वुड स्पिरिट ऑर्ब्स और कल्टीवेशन इंक्यूबेटरों के प्रति आपकी श्रद्धांजलि कम होती गई है। यदि हम उनमें इस मौजूदा मुद्दे को भी जोड़ दें, तो मेरे शाही पिता के लिए नाराज न होना मुश्किल हो जाएगा। लेई कियानफेंग की अभिव्यक्ति बदल गई और वह पूरी तरह कांपने लगा। डाकिया क्षेत्र में वह एक महान क्षेत्र का राजा था, जो एक हाथ से आकाश को ढक सकता था, लेकिन दिव्य मार्शल क्षेत्र और उसके निवासियों के सामने वह एक तुच्छ कीड़े से अलग नहीं था। सोल संप्रदाय आज इतना मजबूत क्यों था? इसका कारण ये था कि वे दैवीय मार्शल क्षेत्र के कवच पर सवार थे। दैवीय मार्शल क्षेत्र में कोई भी अन्य व्यक्ति क्रोधित हो सकता है, लेकिन इस बार यह महान क्षेत्र का राजा था। अपने क्रोध में, यदि वह लेई कियानफेंग को मारना चाहता था, जो केवल एक दैवीय राजा था, भले ही वह संपूर्ण आत्मा संप्रदाय ही क्यों न हो, ये होगा धूल उड़ाने जितना आसान हो।
उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि लेई कियानफेग उनके बेटे के चाचा थे। गुएके, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे चाचा धीमे हैं, बात यह है कि इन वर्षों में वुड स्पिरिट की संख्या कम होती जा रही है। उच्च गुणवत्ता वाली खेती की भट्टियां ढूंढना और भी कठिन है। मैं सचमुच गुएके, जब आप वापस जाएं, तो कृपया मेरे लिए कुछ शब्द कहें, विशेष रूप से रॉयल वुड स्पिरिट के संबंध में। अगर मुझमें 1000 हिम्मत हो तो भी मैं कभी भी तुम्हारे शाही पिता से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। वो गुएके ने कहा, कम और कम। सच में? या क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप केवल डाकिया पर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, बीज बोना चाहते हैं और अपनी वुड स्पिरिट और श्रद्धांजलि का एक हिस्सा दूसरों को बेचकर विभिन्न शक्तियों पर नियंत्रण बनाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लेई कियानफेग ने अपना सिर उठाया और उसकी पुतलियां डर के मारे सिकुड़ गईं। गुएके, जियो किंगटोग बोला, यह मामला पूरी तरह तुम्हारे अंकल की गलती नहीं है। यदि मैं बहुत आवेगी न होता तो रॉयल वुड स्पिरिट का ये पूरा मामला आपके शाही पिता के क्रोध का कारण न बनता। आपके शाही पिता आमतौर पर आप पर दया करते हैं और अब केवल आप ही अपने चाचा को बचा सकते हैं। एक बार जब जियो किंगटोग ने बोलना शुरू किया तो वो गुएके का गंभीर और भारी चेहरा चमक उठा और वह तुरंत मुस्कुराया और कहा, नहीं नहीं चाची, गलत नहीं है। जैसा कि आपने कहा, अंकल ने केवल एक बड़ी गलती की है, हालांकि यह कोई जघन्य मामला नहीं है। मैं सारा मामला समझाऊंगा और कुछ दिनों के लिए अपने शाही पिता को मनाऊंगा। एक बार जब वह इससे उबर जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी बोलने में मुझे परेशानी हो रही थी क्योंकि मैं अंकल को याद दिलाना चाहता था कि भविष्य में सब कुछ पूरी सावधानी और विस्तार से किया जाना चाहिए। एक बार जब मैं वापस जाऊंगा तो सब कुछ ठीक कर दूंगा। कृपया आराम से रहें, चाची। जिस तरह से वू गुएके ने लेई कियानफेंग और जियो किंगटोग के साथ व्यवहार किया, वह बिल्कुल अलग था और यह हमेशा से ऐसा ही था। लेई कियानफेंग पहले से ही इसके आदी थे और गुएके की बातें सुनने के बाद उनका चेहरा खुशी से भर गया। जियो किंगटोग ने हल्के से हंसते हुए कहा, गुएके वास्तव में बहुत अच्छा लड़का है, मेरा तुम पर विश्वास करना सही था। बस अफसोस की बात है कि तुम्हारे दोनों चचेरे भाई। जैसे जैसे उसकी आवाज धीमी होती गई, जियो किंगटोग फिर से रोने लगी। वो गुएक तुरंत उसे सांत्वना देने के लिए दौड़ा। चाची, कृपया शोक करना बंद करें, आप निश्चिंत हो सकती हैं। जहां तक मेरे दोनों चचेरे भाइयों का संबंध है, मैं उनसे हिसाब लूंगा। बस एक छोटा सा लिंगयुन मेरी प्यारी चाची का दिल तोड़ने और उसे रोने की हिम्मत करता है। मैं निश्चित रूप से उसे वापस लाऊंगा और तुम्हें उससे निपटने दूंगा। समाप्त करने के बाद उसने लेई कियानफेंग को कठोरता से देखा। उस बच्चे का नाम लिंगयुन था, वह अब कहाँ है? लेई कियानफेंग ने तुरंत उत्तर दिया, हालांकि उस बच्चे की गहन शक्ति कम है, ऐसा लगता है जैसे उसके पास एक अलौकिक क्षमता है। वह इच्छानुसार प्रकट और गायब हो सकता है। हालांकि उसकी निरंतर गतिविधियों और जिस दिशा से वह आता है, उसके आधार पर वह स्थान जहां वह सबसे अधिक छिपता है, ब्लैक सोल माउंटेन रेंज में होना चाहिए। वहां दिन में कई गहरे जानवर सक्रिय रहते हैं और इसलिए वहां का आभामंडल बेहद अव्यवस्थित होता है। इसके अलावा रात में कोहरा भी छाया रहता है, ये छिपने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। इस तथ्य को जोड़े कि वह। तो आइए ब्लैक सोल माउंटेन पर एक नजर डालें। जैसे ही वह बोल रहा था, वू गुएके ने उसकी बात काट दी। मौसी ने कहा कि वह हर दिन कुछ बार दिखाई देता है और वह कल रात भी दिखाई दिया। इसका मतलब है कि उसे पास ही छिपा होना चाहिए और यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। हे चेंगियान, युवा मास्टर, काले लिबास पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आदेश का जवाब दिया। हालांकि यह आपके रुतबे का अपमान हो सकता है, लेकिन इस जगह पर चेहरे पर गंदगी लगी हुई बेकार कूड़े के ढेर के अलावा कुछ नहीं बचा है। हम केवल आपसे उस छोटे से बग को पकड़ने के लिए व्यक्तिगत रूप से कदम उठाने के लिए कह सकते हैं। हाँ, वो चेंगियान ने बिना किसी अभिव्यक्ति के आदेश स्वीकार कर लिया। लेई कियानफेंग पर नजर डालते हुए वो गुएके ने अपनी पीठ के पीछे रखे हाथों को छोड़ दिया। तो चलते हैं। अब लेई कियानफेंग चौंक गए। अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या हम तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वह बहुत दूर न भाग जाए? वो गुएके ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर वह उतना ही षड्यंत्रकारी है जैसा आप कहते हैं, एक बार जब उसे पता चल जाएगा कि दैवीय मार्शल क्षेत्र के लोग यहाँ हैं, तो वह निश्चित रूप से यहाँ से बहुत दूर भाग जाएगा। हर कोई तुम्हारे जैसा सच्चा मूर्ख नहीं होता। हालांकि उन्हें उनके भतीजे द्वारा डांटा गया था, लेकिन लेई कियानफेंग ने जरा भी गुस्सा करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना हाथ हिलाया। तियानगांग, कुछ हॉल मास्टरों को लाओ और इस राजा के पीछे ब्लैक सोल माउंटेन तक चलो। चाची, खूब आराम करो, अपने शरीर को कोई नुकसान मत होने देना।
गुइक निश्चित रूप से आपसे निपटने के लिए लिंग युन को वापस लाएगा। वो गुइके ने जाने से पहले जियो किंगटोंग को सिर झुकाकर आश्वस्त किया। सोल संप्रदाय के बाहर वो गुइके का चेहरा बदसूरत हो गया। बिना किसी औपचारिकता की परवाह किए उसने कहा, चाचा, आपको पता होना चाहिए कि जब मेरे शाही पिता गुस्से में आ जाते हैं तो परिणाम क्या होते हैं। अगर चाची इतनी मिन्नतें न करती तो मुझे इस बात की परवाह ही न होती। हाँ, लेई कियानफेग ने माफी भरी मुस्कान के साथ तुरंत उत्तर दिया, गुइके, आपने इस बार अंकल को बचा लिया है। मैं इसे निश्चित रूप से नहीं भूलूंगा। कोई जरूरत नहीं है। यदि तुम सचमुच सच्चे हो तो मेरी चाची के साथ बेहतर व्यवहार करो। वो गुइके ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। कल हमने पूरी रात चेंगियान से आपके जहर का विश्रण करवाया और मैं भी चाची के साथ पूरी रात उन्हें सांत्वना देता रहा। आप निम्न सितारा क्षेत्र के राजा हैं, फिर भी आपको दयनीय तरीके से धकेला गया। तुमने सच में मेरी और माँ की इज्जत खो दी है। उद्धरण चिन्ह। लेई कियानफेंग चुप रहे, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं इतनी तेजी से यहाँ आने का कारण उस लिंग युन को पकड़ना है। एक तरफ यह आंटी को सांत्वना देने के लिए है, दूसरी तरफ ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लिंग युन को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए, न ही आप उस रॉयल वुड स्पिरिट को ढूंढ पाए। इसका शायद मतलब यह है कि इसकी सबसे अधिक संभावना लिंग युन के साथ है। भले ही ऐसा नहीं है, लिंग युन को पता होना चाहिए कि वह कहाँ है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। लेई कियानफेग सहमत हुए। मैं इसी कारण से हर कीमत पर लिंग युन को खोजने और पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वो गुइके ने गति तेज करते हुए एक बार फिर उपहास किया। वो गुइके सामने थे जबकि वू चेंगियान उनके बगल में थे। लेई कियानफेग और बाकी लोग उनके पीछे थे। वो गुइके ने एक भी शब्द नहीं बोला और बाकी सभी ने एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। ये अस्तित्व जो आमतौर पर डाकिया दायरे को बिना किसी चुनौती के पार कर सकते थे, अब डरावने कछुओं की तरह थे। जब वे सांस लेते थे तो आवाज निकालने की भी हिम्मत नहीं करते थे। वो गुइके की पहचान दी गई थी, जबकि वू चेंगियान, एक भयानक दिव्य संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ, पूरे निचले सितारा क्षेत्र को नीचा दिखाने के लिए पर्याप्त था। दिव्य मार्शल क्षेत्र में भी उनका स्थान बहुत ऊंचा था। वह वर्तमान में वू गुइके के साथ था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह नुकसान से पूरी तरह सुरक्षित है। वे शीघ्र ही ब्लैक सोल पर्वत श्रृंखला के सामने पहुंच गए। लेई कियानफेग ने कहा, गुइके, ये वह जगह है। हमने लिंग युन को पकड़ने के लिए कई बार यहाँ घात लगाकर हमला किया है। एक बार जब हम लगभग सफल हो गए, फिर भी यह सब शून्य हो गया। चेंगियान, वो गुइके ने भौहें चढ़ाकर लेई कियानफेंग को नजरअंदाज कर दिया। वो चेंगियान ने नेतृत्व किया और ऊपर की ओर उड़ान भरी और तुरंत जमीन पर वापस उतरने से पहले पूरी जगह को स्कैन करने के लिए एक दिव्य संप्रभु की भावना का उपयोग किया। ठीक इसी क्षण अचानक एक फीकी लेकिन क्षीण आभास स्पंदित हुई। इसका आभास होते ही सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें 7 रंग की पोशाक पहने एक छोटी सी लड़की दिखाई दी। नाजुक दिखने वाली लड़की एक घने जंगल से होकर गुजरी जो बहुत लंबा नहीं था। एक जीवंत धुन गाते हुए उनकी ओर उछल कूद कर रही थी। यहाँ एक छोटी लड़की क्यों होगी? लेई कियानफेग गुर्राया। आप कौन है? लेई तियानगांग दहाड़ उठा, मानो वह दहाड़ से डर गई हो। छोटी लड़की अपनी जगह पर रुक गई। उसने उन्हें गंभीरता से स्कैन करने के लिए एक बहुत ही उत्सुक लेकिन गंभीर नजर का इस्तेमाल किया और उसके ठीक बाद थोड़ी अजीब अभिव्यक्ति प्रकट की। ओहो, क्या संयोग है। वह लेई तियानगांग के पीछे एक हॉल मास्टर अचानक चिल्लाया, संप्रदाय मास्टर, मुख्य हॉल मास्टर। वह लड़की थी जो आधे महीने पहले लिंग युन के साथ दिखाई दी थी। वह लड़की थी जिसे लिंग युन ने बचाया था। ये वह है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह रंगीन पोशाक, उसके चेहरे पर वह खूबसूरत और बेदाग विशेषताएं। जिसने भी उन्हें पहले देखा था उसके लिए वे एक अविस्मरणीय दृश्य थे। क्या? लेई कियानफेग और लेई तियानगांग के चेहरे रोष में बदल गए। लेई कियानफेग चिल्लाया, उसे तुरंत पकड़ लो। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब छोटी लड़की पहली बार उनकी नजरों के सामने आई तो वो गुइके मजबूती से जमीन पर टिका हुआ था, जैसे उसका शरीर पत्थर बन गया हो। उसका जबड़ा खुला हुआ था, उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसकी दोनों आंखें घबराए हुई खुली हुई थी। उसने जो देखा उसकी पुष्टि करने के बाद उनमें घबराहट बढ़ गई और उसकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं। वह दिव्य मार्शल क्षेत्र के महान क्षेत्र राजा का पुत्र था, एक सर्वोच्च अस्तित्व जिसे कोई भी नहीं देख सकता था। ऊपरी तारा क्षेत्र में अपराध करने का साहस करो। इस समय उसकी आंखों में ऐसा सदमा लगा मानो उसने कोई भूत देख लिया हो।
कियानफे के आदेशों का पालन करते हुए ले तियांगांग व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़े और एक विशाल चट्टान की तरह लिटिल जैस्मीन की ओर गोली चलाई। हालांकि उनकी प्रतिद्वंद्वी एक छोटी लड़की थी जिसकी आभा केवल सम्राट प्रोफाउंड दायरे की थी, लेकिन उसके शरीर से जो आभा उभरी वह वास्तव में चौंकाने वाली थी। पिछले महीने से सभी मामलों में लिंग युन द्वारा कदम उठाए जाने के कारण उनके द्वारा नियंत्रित 64 हॉलों को भारी नुकसान हुआ था। मुख्य हॉल मास्टर के रूप में ले तियांगांग के भीतर स्वाभाविक रूप से बहुत सारा दबा हुआ गुस्सा भी था। उसके सामने वाली लड़की स्पष्ट रूप से लिंग युन से जुड़ी हुई थी। यदि वह उसे पकड़ने में सक्षम था तो इसका मतलब ये होगा कि उसने अंततः लिंग युन का पीछा करने और उसे मारने में एक बड़ा कदम उठाया है। जैसे ही वह तेजी से आगे बढ़ा, उसके आसपास की जगह में मोटे आंसू दिखाई देने लगे। ले तियांगांग के निर्णायक कदमों के कारण वू गुइके की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। वू गुइके अचानक ले तियांगांग की ओर दौड़ा। उसकी हरकतें इतनी अचानक और तेज थी कि ऐसा लगा मानो सुई उसकी गांड में चुभ गई हो। उसकी जल्दबाजी और उत्सुकता में उसका मूल रूप से अभिमानी और गौरवपूर्ण धन पूरी तरह से खो गया था। टकराना। जल्दबाजी में तैयार की गई सेना ने ले तियांगांग की बिना तैयारी वाली पीठ पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह आसमान से गिरकर जमीन पर पटक गया। अपने पैरों पर वापस चढ़ने और स्थिर होने के बाद वह पीछे मुड़ा और वू गुइके की ओर देखा, जिसने अभी अभी उस पर हमला किया था। ले तियांगांग जहां थे वहीं जमे रहे, भ्रमित थे और बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ले कियानफे का चेहरा संदेह और भ्रम से भरा था जब उसने पूछा, गुइके, तुम क्या कर रहे हो? ऐसा प्रतीत हुआ कि वू गुइके ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और कई कदम आगे बढ़कर राहत की सांस ली। वह लिटिल जैस्मिन के ठीक 10 कदम आगे रुका। उसका शरीर थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ था और उसका चेहरा परेशानी से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुस्कुराना चाहता था लेकिन डर के कारण मुस्कुरा नहीं पा रहा था। आखिरकार उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय रूप से कठोर और बदसूरत मुस्कान उभरी। महामहिम, उस मूर्ख की अभी अभी आंखें नहीं रहीं और इस प्रकार उसने महामहिम को लगभग नाराज कर दिया। उसने नहीं। उसने तुम्हें परेशान नहीं किया क्या? उसने। ले कियानफे और ले तियांगांग अचानक भयभीत हो गए क्योंकि वू चेंग्यान, जो अपनी आध्यात्मिक भावना के साथ आकाश के भीतर से देख रहा था, सदमे से भरे चेहरे के साथ नीचे आया। वो गुइके की वर्तमान झुकी हुई और मुस्कुराती हुई उपस्थिति उसे एक चापलूस की तरह लग रही थी। नहीं, उसका वर्तमान स्व पहले ही चूसने से परे चला गया था। उसका सारा पूर्व अहंकार दबन गई और यहाँ तक कि उसकी पहले की फिजूल खर्ची, जो दिव्य वैवाहिक क्षेत्र के राजा के पुत्र के रूप में उसकी स्थिति के अनुकूल थी, सभी गायब हो गए थे। उनकी आंखों में न केवल भय उभर आया, बल्कि उनकी अभिव्यक्ति और उनके कार्यों से स्पष्ट विनम्रता प्रकट हुई। चाहे वह वू चेंग्यान हो या ले कियानफेंग, उन्हें यकीन था कि भले ही वू गुइके अपने पिता वू सानजुन का सामना कर रहा हो, वह इतने डरे हुए तरीके से काम नहीं करेगा। छोटी जैस्मिन ने वू गुइके को ध्यान से देखते हुए कई बार अपनी पलकें झपकाईं। बाद में उसकी भौहें टेढ़ी हो गईं और उसने कहा, अय्या, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने परिचित लग रहे थे। ऐसा लगता है जैसे हम बहुत समय पहले नहीं मिले थे। मुझे सोचने दो, मुझे याद है तुम्हें बुलाया जाता है। हाँ, दिव्य मार्शल क्षेत्र का। वो गुई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उन छोटे कछुओं में से एक हैं। सही। वो सानजुन के कई बच्चे थे। पिछले 100 वर्षों में पैदा हुए लोगों के लिए उन्होंने उपनाम गुई अपनाया। उनके नाम वू गुइयुन, वू गुइलिन, वू गुई के आदि होंगे। हालांकि वू गुई बहुत हद तक कछुआ जैसा लगता था, लेकिन क्योंकि दिव्य मार्शल क्षेत्र इतना शक्तिशाली था और क्योंकि यह क्षेत्र के राजा के बेटे के लिए वर्जित था, जो कोई भी वू गुई को कछुए के साथ भ्रमित करने की हिम्मत करता था वह व्यावहारिक रूप से मौत को दावत दे रहा था। वो गुइके के सामने लिटिल जैस्मीन द्वारा उन छोटे कछुओं में से एक कहने के लिए उसने उसके भाइयों और बहनों को भी चेहरे के इस मामले में घसीट लिया था। फिर भी वू गुइके बिल्कुल भी क्रोधित नहीं था, बल्कि काफी खुश था और उसने उत्साह से कहा, ये वू गुइके है। महामहिम ने मुझे याद किया। मैं अविश्वसनीय रूप से सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। ले कियानफे और बाकी सभी हैरान थे। उनके दिमाग इतने भ्रमित हो गए थे कि वे मुश्किल से ही सोच पा रहे थे। जहां तक ब्लैक सोल हॉल मास्टर की बात है, जिसने लिटिल जैस्मीन को बहुत पहले ही पहचान लिया था, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और उसका मुंह खुला हुआ था, फिर भी वह थोड़ी सी भी आवाज नहीं कर सका। युवा मास्टर, ये युवा महिला है? वो चेंग्यान ने सावधानी से पूछा। उसकी आवाज सदमे से भरी थी। वो गुइके ने न तो अपना सिर घुमाया, न ही कोई प्रतिक्रिया दी। अगर उसमें बोलने की हिम्मत भी हो तो वह लड़की की पहचान के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं करेगा।
उन्होंने खुद को 8 डिग्री और झुकाते हुए भी हल्की मुस्कान बनाए रखने की कोशिश जारी रखी। अत्यंत विनम्र भाव से उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य है कि महामहिम यहाँ क्यों आए हैं। क्या कोई बात है? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, वू गुइके का दिमाग एक पल के लिए शून्य हो गया, क्योंकि ठंडे पसीने ने अचानक उसकी पीठ को ढक लिया। उसकी भयावह स्थिति को देखते हुए उसके लिए व्यक्तिगत रूप से यहाँ आना एक बड़ी बात रही होगी। यह ऐसी चीज कैसे हो सकती है जिसके बारे में वह पूछताछ कर सके? ठंडे पसीने में बहते हुए वू गुइके ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपने शब्द बदल दिए। यहाँ महामहिम से मिलने में सक्षम होने के लिए गुइके सम्मानित महसूस कर रहा है। महामहिम, यदि ऐसी कोई चीज है जिसमें गुइके मदद कर सकता है तो कृपया अवश्य बताएं। गुइके का जीवन आपका है। निस्संदेह उनके अंतिम शब्द केवल शिष्टाचार और शिष्टता के कारण कहे गए थे। हालांकि वह अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचता था, लेकिन उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि वह लड़की की किसी भी तरह से मदद कर पाएगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बातें सुनकर लड़की की आंखें चमक उठेगी। वाह, वास्तव में वह महान होगा। वो गुइके ने तुरंत उत्तर देते हुए कहा, महामहिम की सेवा करने में सक्षम होना गुइके का आशीर्वाद है। मुझे आश्चर्य है कि महामहिम क्या। हे। दरअसल मेरे लिए यहाँ आना आसान नहीं था। मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। अगर छोटा कछुआ मेरी मदद करने को तैयार है तो ये बहुत अच्छा होगा। लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसकी कोमल हंसी खिले हुए कमल के समान अतुलनीय मधुर थी। वो गुइके ने सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसकी खोपड़ी में झुनझुनी सुन्नता फैल गई थी और उसके दिल में बेचैनी की तीव्र लहरें उभर आई थी। वह केवल गोली ही खा सका और उसने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि महामहिम क्या खोज रहे हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत कीमती हो। नन्ही जैस्मीन का चेहरा मासूमियत से भरा था और उसने कहा, ये केवल एक छोटा सा पत्थर है। मुझे याद है इसे डिवाइन 9 स्टार बुद्धा जैट जैसा कुछ कहा जाता था। छोटे कछुए, क्या तुम्हारे पास इनमें से कोई पत्थर है? जैसे ही लिटिल जैस्मीन के होठों से डिवाइन 9 स्टार बुद्धा जैट नाम निकला, वू चेंग्यान की भौहें अचानक झुर्रीदार हो गईं और वू गुइके का दिल कड़ा हो गया। बाद में उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, डिवाइन 9 स्टार बुद्ध जैड एक अत्यंत दुर्लभ पत्थर है और इसे खोजना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। कोई इसके बारे में सपने देखता है लेकिन उसे कभी नहीं मिल पाता। गुइके भी इसके बारे में केवल सपना ही देख सकता है, लेकिन उसे कभी मिलेगा नहीं। हालांकि चूंकि महामहिम ने इसका आदेश दिया है, गुइके दैवीय मार्शल क्षेत्र में लौटने के बाद तुरंत इसकी खोज करने के आदेश पारित कर देगा। यदि कोई समाचार है तो गुइके निश्चित रूप से समाचार को महामहिम तक पहुंचाने की एक विधि के बारे में सोचेंगे। क्या ऐसा है? लड़की मुस्कुराती रही, लेकिन उसके होठों के कोने थोड़े हिल गए थे। उसकी मधुर मुस्कान के पीछे ऐसा प्रतीत होता था, लेकिन ऐसा नहीं भी था, अन्य अभिव्यक्तियां जिससे उपस्थित सभी लोगों को डर के कारण अपने दिल की धड़कन महसूस होने लगी। लेकिन स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र में एक बूढ़े दादा ने कहा कि पिछले महीने में आपको दिव्य 9 सितारा बुद्ध जैड का एक टुकड़ा मिला है, और वह टुकड़ा स्वयं बूढ़े व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से वितरित भी किया गया था। क्या वह बूढ़ा दाढ़ी वाला दादा मुझसे झूठ बोल सकता था? ये सुनकर कि लिटिल जैस्मीन स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र के बूढ़े दाढ़ी वाले दादाओं में से एक को बोलने के लिए रिश्वत देने में सक्षम हो गई थी, वू गुइके और वू चेंग्यान के भाव एक साथ बदल गए। ये केवल अब था जब मामला इस बिंदु पर पहुंच गया था कि वू गुइके अपनी उलझन से उबर सका। यह कोई संयोग नहीं था कि लड़की यहाँ आई थी और उसके सामने आ गई। वू गुइके अचानक फिर से ठंडे पसीने से लथपथ हो गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। यहाँ तक कि उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि उसके जैसा कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी नजरों में छोटा व्यक्ति के रूप में भी योग्य नहीं होगा, वास्तव में एक ऐसा दिन आएगा जब उसे विशेष रूप से खोजा जाएगा। इस वर्तमान क्षण में वो ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसे सम्मानित महसूस करना चाहिए या डरना चाहिए। वास्तव में उसके पास वर्तमान में एक दिव्य 9 सितारा बुद्ध जैड था। ये कुछ ऐसा था जो उसने कई वर्षों की कठिन खोज और भारी कीमत चुकाने के बाद सौभाग्य से प्राप्त किया था। डिवाइन 9 स्टार बुद्ध जैड के इस टुकड़े के साथ उन्हें विश्वास था कि वह 2 वर्षों में प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन से पहले अपनी गहन शक्ति को एक और बड़े स्तर तक बढ़ाने में सक्षम होंगे, जिससे उन्हें पूर्वी डिवाइन क्षेत्र की रैंकिंग में सूचीबद्ध होने की अनुमति मिलेगी। इस प्रकार परिस्थितियों की परवाह किए बिना वह इसे दूसरों को सौंपने को तैयार नहीं था। हालांकि उसके सामने वाली लड़की ऐसी थी जिसे वह बिल्कुल भी अपमानित नहीं कर सकता था। वो एक भयानक अस्तित्व थी जो अपनी उंगलियों के झटके से उसके जीवन और मृत्यु का निर्धारण कर सकती थी। भले ही उसके पास 10 और जिंदगियां हो, फिर भी वह उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा।
उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा था जब वो गुइके डर कर सहम गया और बोला, महामहिम, पिछले समय में गुइके को वास्तव में एक भाग्यशाली अवसर का सामना करना पड़ा और उसने एक दिव्य 9 सितारा बुद्ध जेट प्राप्त किया। हालांकि ऐसा नहीं है कि गुइके इसे महामहिम को देने को तैयार नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अय्या, छोटे कछुए को इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। छोटी जैस्मीन ने अपना सिर एक तरफ झुकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बस इसे जबरदस्ती ले जा रही थी। हालांकि मैं वास्तव में एक दिव्य 9 सितारा बुद्ध जेट चाहता हूँ। ये वर्तमान में आपका है, मैं तुम्हें इसे मुफ्त में कैसे दे सकता हूँ? आखिरकार मैं बहुत प्यारी छोटी लड़की हूँ, मैं एक अनुचित बुरे व्यक्ति की तरह कैसे व्यवहार कर सकता हूँ? वो गुइक खाली हो गया। मैं अन्य सामग्रियां निकालने और आपके साथ व्यापार करने को तैयार हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि सामग्री डिवाइन 9 स्टार बुद्ध जेट जितनी अच्छी होगी। जैसे ही छोटी जैस्मीन ने कुछ बहुत ही उचित शब्द बोले, उसकी लंबी पलकें फड़फड़ाने लगी। अगर छोटी कछुआ सामग्री देखने के बाद व्यापार नहीं करना चाहती है, तो मैं गारंटी देती हूँ कि वह इसे जबरदस्ती नहीं लेगी, ठीक है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। छोटी जैस्मीन के शब्दों से वू गुइके को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसी समय उनके मन में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मुझे आश्चर्य है कि महामहिम किस सामग्री की बात कर रहे हैं। ये है। छोटी जैस्मीन ने अपना हाथ खोला और अपनी सफेद कोमल हथेली के बीच में गोल काले गहरे पत्थर को प्रकट किया। जाहिर है, यह सिर्फ एक साधारण गहन इमेजरी स्टोन था। इससे पहले कि वो गुइक कुछ बोल पाता, लिटिल जैस्मीन का हाथ पत्थर से दब गया, जिससे प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन के केंद्र से ध्वनि के साथ एक प्रक्षेपण अचानक सबके सामने प्रकट हो गया। लेई कियानफेंग और बाकी लोगों ने देखा कि प्रक्षेपण से उनके ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट के मुख्य हॉल की एक छवि बन गई है। जहां तक छवि में मौजूद लोगों की बात है, वो गुइके, वू चेंगियान, लेई कियानफेंग और जियो किंगटोग सभी मौजूद थे। इससे पहले कि आप उस लिंग यून की बात कहें, बेहतर होगा कि आप पहले अपना ख्याल रखें। रॉयल वुड स्पिरिट वाले मामले का क्या हुआ? इस बात से बेहद नाराज हैं शाही पिता। बेहतर होगा कि आप उचित हिसाब दें। प्रक्षेपण के भीतर से वू गुइके के तेज और उग्र स्वर में बोलने की आवाज आई। रॉयल वुड स्पिरिट से जुड़ी बात झूठी नहीं है। जब हम उस रॉयल वुड स्पिरिट को पकड़ने में कामयाब रहे, तो हम तुरंत उसे आपके शाही पिता को उपहार में देने वाले थे। हालांकि लापरवाही के एक क्षण के कारण लिंग युन ने रॉयल वुड स्पिरिट को छीन लिया। गहन छवि के भीतर लेई कियानफेंग ने उत्सुकता से उत्तर दिया, रॉयल वुड स्पिरिट के मुद्दे को छोड़ दे तो इन कुछ वर्षों में वुड स्पिरिट ऑर्ब्स और कल्टीवेशन इंक्यूबेटरों के प्रति आपकी श्रद्धांजलि कम और कम हो गई है। यदि हम उनमें इस मौजूदा मुद्दे को भी जोड़ दें, तो मेरे शाही पिता के लिए नाराज न होना मुश्किल हो जाएगा। गुइके, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे चाचा धीमे हैं, बात यह है कि इन वर्षों में वुड स्पिरिट की संख्या कम होती जा रही है। उच्च गुणवत्ता वाले खेती इंक्यूबेटर ढूंढना और भी मुश्किल है। मैं सचमुच गुइके, जब आप वापस जाएं, तो कृपया मेरे लिए कुछ शब्द कहें, विशेष रूप से रॉयल वुड स्पिरिट के संबंध में। अगर मुझमें 1000 हिम्मत हो तो भी मैं कभी भी तुम्हारे शाही पिता से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। कम और कम, सच में। या क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप केवल डाकिया पर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, बीज बोना चाहते हैं और अपनी वुड स्पिरिट और श्रद्धांजलि का एक हिस्सा दूसरों को बेचकर विभिन्न शक्तियों पर नियंत्रण बनाना चाहते हैं? पहला दृश्य देखने और पहले शब्द सुनने पर वू गुइके का चेहरा अविश्वसनीय रूप से पीला पड़ गया। जब तक मुस्कुराते हुए छोटी जैस्मीन द्वारा गहरा प्रक्षेपण अचानक वापस ले लिया गया, तब तक वू गुइके का पूरा शरीर कमजोर महसूस हुआ। उसके पैर अस्थिर हो गए और उसे महसूस हुआ कि उसके सभी आंतरिक अंग बुरी तरह कांपने लगे हैं। वो चेंगियान की अभिव्यक्ति, जो उसके बगल में उसके रक्षक के रूप में कार्य कर रही थी, एक साथ बदल गई। उसकी सिकुड़ती पुतलियां वू गुइके से कम घबराहट और भय से भरी नहीं थी। रॉयल वुड स्पिरिट ऑर्ब्स और इंक्यूबेटरों की श्रद्धांजलि। और यह स्पष्ट रूप से वू गुइक व्यक्तिगत रूप से ऐसी बातें कह रहा था। वुड स्पिरिट्स को मारना गैरकानूनी था। यह एक नियम था जिसे अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र और 3 अन्य राजा क्षेत्रों द्वारा संयुक्त रूप से लगाया गया था। यदि इस गहन इमेजरी स्टोन के दृश्य लीक हो जाते, तो इसका परिणाम दिव्य मार्शल क्षेत्र के भीतर एक घोटाले जितना सरल नहीं होता। उन्हें शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र द्वारा मंजूरी दी जाएगी और उनका न्याय किया जाएगा। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि यह गहन कल्पना पत्थर उस छोटी लड़की के हाथ में था। जहां तक उसकी बात है, वह मुख्य पात्र था। यदि इस घटना को पूरे ईश्वर क्षेत्र में फैलने दिया गया, तो वह बर्बाद हो जाएगा।
दिव्य मार्शल क्षेत्र के भीतर उसके लिए परिणाम और भी अधिक अकल्पनीय थे। हालांकि कई सितारा लोगों ने गुप्त रूप से वुड स्पिरिट ऑर्ब्स को जब्त कर लिया और यहां तक कि लकड़ी की आत्माओं को भी मार डाला। गुप्त रूप से किया जाना और जनता को ज्ञात होना पूरी तरह से दो अलग मामले थे। वो गुएके की आंखों की पुतलियां व्यावहारिक रूप से अपना सारा रंग खो बैठी, मानो उनकी आत्मा उनके शरीर से बाहर निकल गई हो, केवल एक भूसी रह गई हो। ये पल उनकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। आप कौन हैं? आपको हमें ब्लैकमेल क्यों करना चाहिए? वो चेंग्यान ने एक कदम आगे बढ़ाया, सीधे वो गुएके के पास खड़ा हो गया, जिसका चेहरा अब अपनी उदासीनता बरकरार नहीं रख सका। प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन द्वारा प्रक्षेपित दृश्य केवल 3/4 घंटे से अधिक पहले घटित नहीं हुए थे। इसका मतलब ये था कि उस समय उसने खुद को उनके बगल में कहीं छिपा लिया था और वे उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाए थे। छोटी जैस्मीन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और वू चेंग्यान की ओर देखा। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसके होंठ असंतोष के भाव से उठे। अंकल, आप बहुत भयंकर हैं। क्या आप नहीं जानते कि आपको सुंदर लड़कियों के साथ सौम्य व्यवहार करना चाहिए? आपको और बोलने की अनुमति नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी आवाज कोमल और सुखदायक थी, लेकिन एक बार आखिरी शब्द बोलने के बाद वू चेंग्यान का पूरा शरीर रुक गया, क्योंकि उसके दिल और आत्मा में डर की एक बेवजह भावना उभर आई, जिससे उसकी पहले से ही सिकुड़ी हुई पुतलियां कई बार सिकुड़ गईं। चेंग्यान, तुम्हें दूसरा शब्द कहने की अनुमति नहीं है। थोड़ा ठीक होने के बाद वू गुएके ने जल्दी से वू चेंग्यान को दूर धकेल दिया। वो चेंग्यान एक कदम पीछे हट गया और फिर वास्तव में अपना मुंह बंद कर लिया, एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। छोटे कछुए, मेरे हाथ में जो चीज है वह दुनिया में अपनी तरह की अकेली चीज है। मैंने ये सब पहले ही देख लिया था। आपने क्या सोचा? बहुत अद्भुत है ना? तो क्या आप अपने डिवाइन 9 स्टार बुद्ध जेड के साथ इसका व्यापार करना चाहेंगे? लड़की के चेहरे पर एक मासूम मुस्कुराहट एक बार फिर उभर आई जब उसने अपनी हथेली के केंद्र में प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन को पकड़ लिया और उसने बेहद दोस्ताना और मददगार अंदाज में कहा, यदि आप व्यापार नहीं करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल जीत गई। तुम्हें इसके लिए मजबूर मत करो। डिवाइन 9 स्टार बुद्ध जेड उसे कम समय में अपनी गहन शक्ति बढ़ाने की अनुमति देगा, जबकि लड़की के हाथ में मौजूद प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन अगर किसी राजा के हाथ में पड़ गया तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। इस प्रकार वू गुएके के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसने सिर हिलाया और उत्तर दिया, मैं व्यापार करूंगा। महामहिम, हालांकि कृपया उदार रहें, इसमें कई दिन लगेंगे। चूंकि दिव्य 9 सितारा बुद्ध जेड बहुत कीमती है, इसलिए मैंने इसे दिव्य मार्शल क्षेत्र में छोड़ दिया। मुझे जाने और लौटने में कुछ समय लगेगा। ठीक है। छोटी जैस्मीन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति में सिर हिलाया। जब से मैं सफेद दाढ़ी वाले चाचा को खेलने के लिए अनंत स्वर्ग क्षेत्र में गई हूँ, तब से काफी समय हो गया है। समय आने पर मैं सफेद दाढ़ी वाले चाचा के साथ तुम्हें ढूंढने आऊंगा। वो गुएके का पूरा शरीर अचानक अकड़ गया, क्योंकि उसके दिमाग में आखिरी विचार पूरी तरह से गायब हो गए। जवाब देते समय उसके होंठ और भी तेजी से कांपने लगे। महाराज, मुझे अचानक याद आया, जाने से पहले मैंने वास्तव में डिवाइन 9 स्टार बुद्ध जेड को अपने साथ लाने का फैसला किया था। मुझे आशा है कि महामहिम खुश हैं। जैसे ही वह बोला, उसके कांपते हाथों ने बाहर निकलकर एक छोटा सफेद जेड पत्थर उठाया। जब जेड पत्थर प्रकट हुआ तो आसपास का पूरा क्षेत्र अचानक बहुत चमक उठा। यह दिव्य 9 सितारा बुद्ध जेड था। उसका छोटा सा हाथ हिलते ही नन्ही जैस्मीन की पुतलियां चमक उठी। एक ही पल में जेड पत्थर उड़कर उसके हाथ में आ गया। जेड छोटा था और उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा के समान दीप्तिमान था। जेड के भीतर 9 तारे जड़े हुए थे। इसने चंद्रमा और आड़े तिरछे तारों की याद दिलाती हुई चमक छोड़ी। छोटी जैस्मीन के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान उभर आई। मुस्कुराहट के साथ उसने दिव्य 9 सितारा बुद्ध जेड को दूर रख दिया। बाद में उसने अपनी एक उंगली को झटका दिया, जिससे प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन पैदा हुआ, जिसने वो गुएके को लगभग डरा दिया और उसके हाथ में उड़कर गिर गया। छोटे कछुए, याद रखें कि आप इस व्यापार के लिए सहमत थे। मैंने तुम्हें बिल्कुल मजबूर नहीं किया है। प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन प्राप्त करने पर वू गुएके ने सीधे गहन ऊर्जा का उपयोग करने और इसे टुकड़ों में कुचलने से पहले इसे अपनी उंगलियों में कई बार घुमाया। बाद में उसने अपना सिर उठाया और रोने से भी अधिक कुरूप मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, मैं तैयार था। धन्यवाद महामहिम, मेरी मदद करने के लिए। सही।
छोटी जैस्मीन ने खुशी से अपना सिर हिलाया, और यह सोचने के लिए कि मैंने सोचा था कि आप व्यापार करने के इच्छुक नहीं होंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस चीज की कीमत इतनी होगी। छोटी जैस्मीन के होंठ फिर से थोड़े मुड़े हुए थे, जिससे उसके दांत दिखने लगे, क्योंकि उसका छोटा हाथ फिर से बाहर की ओर बढ़ गया। उसकी नाजुक सफेद उंगलियों के बीच एक और गहरा इमेजरी स्टोन दिखाई दिया। ईमानदारी से कहूं तो मेरे पास यही एक और है। छोटे कछुए, क्या तुम मेरे साथ फिर से व्यापार करना चाहते हो? हे। वो गुइके ने अचानक अपना सिर उठाया। महाराज, आप। बेशक यह पिछले वाले जैसा नहीं है, हालांकि यह बहुत घृणित भी है। छोटी जैस्मीन की चमकदार आंखें दो नए चंद्रमाओं की तरह घूम गईं, जैसे उसने कहा, पिछली रात मैं बाहर खेल रही थी जब अचानक मैंने एक नग्न छोटे कछुए और चाची नाम की एक बड़ी बहन को एक दूसरे को गले लगाते और एक साथ अजीब चीजें करते देखा। हालांकि मैं बेहद घृणित था, लेकिन मैं बेहद उत्सुक भी था, और इसलिए मैंने इसे गुप्त रूप से रिकॉर्ड कर लिया। क्या आप सभी देखना चाहते हैं? वो गुइके का शरीर हिल गया और उसका चेहरा अचानक सूअर के जिगर की तरह लाल हो गया। जहां तक ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट के सदस्यों की बात है, वे जहां थे वहीं खड़े रहे। फिर एक एक करके उन्होंने अपनी निगाहें लेई कियानफे की ओर घुमाई। जब जैस्मीन ने बोलना समाप्त किया तो ऐसा लगा जैसे लेई कियानफे पर बिजली गिर गई हो। हालांकि जब उन्होंने वो गुइके की अभिव्यक्ति में भारी और अचानक बदलाव देखा, तो उनके सभी संदेह गायब हो गए। मानो उसके सिर में एक तेज आवाज गूंज गई हो। उसने एक पल के लिए शून्यता का भाव दिखाया। उसने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और वो गुइके की ओर इशारा किया। उसका चेहरा उदास हो गया और सदमे से मुड़ गया, और उसने कहा, गुइके, क्या ये सचमुच सच है? क्या ये सच है? वो गुइके का चेहरा वैसे ही विकृत हो गया जैसे उसकी आंखों में घबराहट उभर आई। हालांकि उसे इस बात का डर नहीं था कि इस मामले के कारण लेई कियानफेंग को बदनामी झेलनी पड़ी, बल्कि इस बात का डर था कि इस मामले की खबर फैल रही है। उसने अपनी ही चाची के साथ कामुक हरकतें की थी। ये निस्संदेह मानवीय नैतिकता का अत्यंत बड़ा उल्लंघन था। ये कुछ ऐसा था जिसे वह कभी नहीं धो पाएगा। ये मामला वुड स्पिरिट ऑर्ब्स से जुड़े मामले से भी ज्यादा गंभीर था। वो गुइके का पूरा शरीर कांप रहा था। लेई कियानफे का प्रश्न सुनने पर उनकी पहली प्रतिक्रिया अपराधबोध की नहीं, बल्कि विनम्रता की थी, जो क्रोध में बदल गई। वो गुइके अचानक पलटा। उसकी आंखें तश्तरी जितनी बड़ी थी। जैसे ही उसने उत्तर दिया, उसकी सभी पूर्व महान आभा अचानक एक अत्यंत घृणित अभिव्यक्ति में बदल गई थी। तो क्या हुआ अगर ऐसा है? मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी चाची के साथ मेरा रिश्ता 10 साल पहले अच्छा शुरू हुआ था। अन्यथा आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि क्या मैं हर वर्ष इस निचले स्तर की भूमि पर आऊंगा? आप। लेई कियानफे ने अचानक 2 कदम आगे बढ़ाए, इससे पहले कि उनके शेष तर्क के कारण वह वहीं रुक जाते। जोर से हौंकते हुए वह चिल्लाया, जानवर, वह तुम्हारी चाची है। हा। वो गुइके ने उपहास किया। लेई कियानफे, आप स्वयं अच्छी तरह से जानते हैं कि आप किस प्रकार के कचरा हैं। मेरी चाची इतनी प्यारी और खूबसूरत इंसान है, फिर भी उन्हें आप जैसे पुराने आदमी का अनुसरण करना पड़ता है। मैं उनका भतीजा होने के नाते जब भी उन्हें देखता हूं तो बुरा महसूस करता हूं। अब यदि आप काफी होशियार हैं तो आप ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं। इस तरह आप मेरे चाचा और इस निचले सितारा क्षेत्र के राजा बने रह सकते हैं। अन्यथा आप केवल एक व्यभिचारी बुरे आदमी बन सकते हैं। आप। लेई कियानफेंग की आंखें बाहर की ओर उभर आई और उसकी छाती चौड़ी हो गई, जैसे कि वह उड़ने वाली हो। गुस्सा और अपमान अचानक उसकी बची हुई तर्कशक्ति पर हावी हो गया, और वह एक जंगली जानवर की तरह वो गुइके पर चिल्लाया, तुम जानवर हो। जैसे ही वो चेंग्यान उसके सामने आया, वो गुइके के सामने एक छाया टिमटिमा गई। इससे पहले कि लेई कियानफेंग और करीब आ पाता, उसका शरीर अचानक पीछे की ओर उड़ गया, जैसे कि वह किसी अदृश्य दीवार से हिंसक रूप से टकरा गया हो। पफ्ट। जमीन पर पटकने पर लेई कियानफेंग ने मुंह से बहुत सारा खून उगल दिया। यह अज्ञात था कि यह किसी चोट के कारण था या उसका रक्त प्रवाह उलट गया था। वह उठ बैठा, लेकिन खड़ा नहीं हुआ। वह वैसे ही बना रहा। उसकी आंखें सीधे सामने की ओर देख रही थी, मानो उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया हो, जबकि वह बार बार बड़बड़ा रहा था, बी ब्रूट, स्लट, बी ब्रूट। ब्लैक सोल डिवाइन संप्रदाय के सदस्यों ने उसे घेर लिया था, न कि उनमें से एक ने आवाज निकालने का साहस किया। उन सभी के दिल सदमे से कांप रहे थे। हालांकि वो गुइके ने हमेशा लेई कियानफे को अपना चाचा कहा था, लेकिन ये हमेशा सम्मान के बिना था। दरअसल वे काफी समय से विभिन्न मामलों पर उनकी डांट के आदी हो गए थे। फिर भी उन्होंने जियो किंग टोग के साथ हमेशा बहुत अच्छा व्यवहार किया था।
ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में ली कियानफेंग हमेशा बहुत राहत महसूस करते थे। बस उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इन दोनों का इतना घिनौना अफेयर चल रहा है। इसके अलावा ये पहले ही 10 वर्षों तक चल चुका था। वे ऐसी स्थिति के बाद होने वाले परिणामों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अय्या, हर कोई अचानक क्यों चिल्लाने लगा और इतनी उग्रता से। छोटी जैस्मीन ने मासूमियत से पलकें झपकाई जैसे कि इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं है और अचानक हंसने लगी। हालांकि ये बहुत मजेदार लगता है। अगर मैं ये प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन दूसरों को देखने के लिए दूं, तो क्या इससे भी ऐसा मजा आएगा? वो गुएके का पूरा शरीर अचानक अकड़ गया क्योंकि वह जल्दी से घूमा और उत्सुकता से कहा, रुको 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 महामहिम, वह गहन कल्पना पत्थर, मैं इसे खरीदूंगा। महामहिम जो भी कहे, जब तक कि यह पर्याप्त न हो। वो गुएके ने अपने दांत पीस लिए और उसके दो कांपते हाथों ने मुट्ठी के आकार का एक अजीब ग्रे पत्थर निकाला। ये धूसर पत्थर किसी भी प्रकाश को परावर्तित नहीं करता था। इसे देखने पर ऐसा महसूस हुआ मानो उनका परिवेश धीरे धीरे धूमिल हो रहा था, मानो पूरी दुनिया बिना किसी निशान के चुपचाप निली जा रही थी। इन अजीब और रहस्यमय भूरे पत्थर को देखकर छोटी जैस्मीन की आंखों की गहराई में एक उत्सुक चमक चमक उठी। शून्य भ्रम पत्थर, वाह, ऐसा लगता है जैसे ये वास्तव में एक शून्य भ्रम पत्थर है। ये सोचने के लिए कि आपके पास ऐसी अच्छी चीजें हैं। लिटिल टर्टल। डिवाइन 9 स्टार बुद्धा जेड प्राप्त करने के बाद छोटी जैस्मीन को केवल सफलता की खुशी महसूस हुई। जहां तक इस भूरे पत्थर की बात है, इसके कारण वास्तव में उसे कुछ झटका लगा और यह काफी तीव्र झटका था। युवा मास्टर। वो गुएके को शून्य भ्रम पत्थर निकालते देखकर वू चेंग्यान ने अचानक कहा, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। 1,00,000 वर्षों में नहीं। वो गुएके ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और उसके चेहरे पर और भी कुरूप मुस्कान उभर आई। महामहिम की आंखें बुद्धिमान है। ये वास्तव में एक शून्य भ्रम पत्थर है। शून्य भ्रम पत्थर देवताओं के युग का एक स्थानिक देव पत्थर है जो स्वर्गीय गहन खजाने के विश्वभेदी से शक्ति के संचार के माध्यम से बनाया गया है। न केवल यह अत्यंत दुर्लभ है, उपयोग किया गया प्रत्येक टुकड़ा हमेशा के लिए खो जाता है क्योंकि वे अब बनाए जाने में असमर्थ है। इसे अपने शरीर पर रखकर, चाहे आप किसी भी प्रकार के खतरे का सामना करें, आप इसका उपयोग तुरंत भागने के लिए कर सकते हैं। भले ही यह पश्चिमी दिव्य क्षेत्र का ड्रैगन सम्राट हो, आपको डरने की कोई बात नहीं होगी। यह उन्हें अंतरिक्ष में आपका पीछा करने से भी रोकता है। महामहिम पहले से ही एक तरह के हैं, लेकिन आपके साथ होने से आप और भी अधिक नियंत्रण में हैं। कृपया इसे गुएके के महामहिम के प्रति अत्यंत सम्मान के प्रतीक के रूप में स्वीकार करें। वो गुएके के हर शब्द के साथ वह अपने दिल से खून की एक बूंद बहता हुआ महसूस कर सकता था। शून्य भ्रम पत्थर एक ऐसा नाम था जिसे ईश्वर क्षेत्र के ऊपरी क्षेत्रों में हर कोई जानता था। ये वैसा ही था जैसा वो गुएके ने कहा था। न केवल इसे शुरू करना अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था, बल्कि अब इन्हें बनाया भी नहीं जा सकता था। इसके अलावा वे अविश्वसनीय रूप से उपयोगी और शक्तिशाली थे क्योंकि वे किसी भी परिस्थिति में किसी भी संख्या में लोगों को अंतरिक्ष के माध्यम से इस तरह से लाने की अनुमति देते थे जिसे अवरुद्ध या ट्रैक नहीं किया जा सकता था। ये किसी भी सामान्य स्थानिक गहन पत्थर से पूरी तरह से अतुलनीय था। इस प्रकार ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शून्य भ्रम पत्थर के कब्जे में होना एक अतिरिक्त जीवन पाने जैसा था। यदि किसी को वास्तव में कोई खामी बतानी हो तो वह ये होगी कि वह ये नियंत्रित नहीं कर सकता कि वे कहां पहुंचे। इसका उपयोग करने पर किसी को ये पता नहीं चलेगा कि उन्हें अंतरिक्ष में कहां टेलीपोर्ट किया जाएगा। ये शून्य भ्रम पत्थर वू सानजुन द्वारा वू गुएके को उनके 36वें जन्मदिन के लिए दिया गया था। यह उसके जीवन में अब तक मिला सबसे बड़ा उपहार था और इससे उसके भाई बहनों के मन में उसके प्रति बहुत ईर्ष्या पैदा हो गई थी। उसके लिए यह महत्वपूर्ण था कि वह लड़की के हाथों में प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन प्राप्त करे क्योंकि यह उसके भविष्य पर बहुत प्रभावशाली था। इससे होने वाली क्षति कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि वह अपने सामने वाली लड़की की स्थिति जानता था, इसलिए वह जानता था कि वह अपनी नजरों में किसी भी चीज को सामान्य नहीं रखेगी। एकमात्र चीज जिसके बारे में वह सोच सकता था, जो संभवतः उसका ध्यान आकर्षित कर सकती थी, वह थी यह शून्य भ्रम पत्थर। इस प्रकार वह केवल अपना खून निगल सकता था और उसे बाहर निकाल सकता था। और उसे ऐसा आग्रहपूर्वक करना पड़ा, कहीं ऐसा न हो कि लड़की मना करने पर क्रोधित हो जाए। ओह, नन्ही जैस्मीन की आंखें हिल गईं क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने इस शून्य भ्रम पत्थर की प्रामाणिकता की पुष्टि कर दी है। तुरंत उसका छोटा सा चेहरा खुशी से भर गया। भले ही मुझे लगता है कि यह मेरे लिए इसके लायक नहीं है, क्योंकि आप इतने ईमानदार हैं, मैं आपके साथ व्यापार करूंगा।
आखिरकार मैं एक उदार, दयालु और सुंदर छोटी लड़की हूँ। बोलना समाप्त करते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन उड़कर वुगुइके के हाथ में आ गया, जबकि वर्ड इल्यूजन स्टोन उड़कर उसके हाथ में आ गया। उसने इसे सीधे अपने पास रख लिया। उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान थी। वो चेंगियान इसे रोकना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो गुइके का हाथ मुट्ठी में बंध गया, जिससे प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन धूल में बदल गया। डिवाइन 9 स्टार बुद्धा जेड और वर्ड इल्यूशन स्टोन के खोने के साथ उसने अपनी अब तक प्राप्त 2 सबसे मूल्यवान चीजें खो दी थी, और बदले में उसे केवल 2 गहन इमेजरी स्टोन्स प्राप्त हुए थे। वो गुइके की सारी इच्छाएं पूरी हो गई कि वह फूट फूट कर न रोए, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला दी और कहा, हाँ धन्यवाद महामहिम। क्या महामहिम के पास कोई अन्य आदेश है? अंतिम वाक्य में प्रत्येक शब्द के साथ भय भी था। नहीं। लड़की के खिलखिलाते जवाब से वू गुइके के दिल को बहुत आराम मिला। लेकिन फिर उसने देखा कि उसकी नजर अचानक लेई कियानफेंग और बाकी लोगों की ओर चली गई। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और गुस्सा स्पष्ट रूप से उभर आया। ये बुरे लोग वास्तव में लिंग यून को धमकाने की हिम्मत करते हैं। ये राजकुमारी काफी क्रोधित है। लड़की के मुंह से अचानक निकले लिंग यून के कारण वो गुइके अचानक चुप हो गया। इससे पहले कि वह ठीक हो पाता, लड़की ने पहले ही अपना हाथ ऊपर उठा लिया था। उसकी नाजुक सफेद उंगलियां हल्के से हिल रही थी। गहन ऊर्जा के किसी भी उतार चढ़ाव के बिना लेई कियानफेंग और लेई तियांगांग सहित उसके 300 मीटर के भीतर आत्मा संप्रदाय के सभी सदस्य कठोर हो गए। फिर मानो बिजली उनके शरीर में दौड़ रही हो और उन्हें झकझोर रही हो, वे सभी एक साथ भयानक रूप से चिल्लाने लगे। टकराना। लेई कियानफेंग से एक धीमी, बिखरने वाली आवाज निकली। डाकिया क्षेत्र का एकमात्र महान राजा और एकमात्र व्यक्ति जो लगभग दिव्य राजा क्षेत्र तक पहुंच गया था, उसकी गहरी नसें सीधे धूल में बिखर गई थी। हजारों वर्षों की साधना से उन्होंने जो गहन ऊर्जा एकत्रित की थी, वह सीधे टूटकर हर दिशा में बिखर गई। ये देखते हुए कि वह ऐसी स्थिति में कैसे था, लेई तियांगांग और बाकी लोग स्वाभाविक रूप से ऐसे भाग्य से बचने में असमर्थ थे। उन सभी की गहरी नसें कुचल गई थी और गहरी ताकत बिखर गई थी। लेई कियानफेंग के शरीर में ऐंठन होना बंद हो गया, क्योंकि वह जोर से जमीन पर पटक गया। वह बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन उसने चिल्लाना भी जारी नहीं रखा। उसके सातों बेटे मर गए थे और उसकी गरिमा नष्ट हो गई थी। उसकी मुख्य पत्नी का उसके भतीजे के साथ अवैध संबंध था, जिसकी वह हमेशा प्रशंसा करता था, और वह एक राजा से एक अपंग व्यक्ति बन गया था, जिसके पास गहरी ऊर्जा नहीं थी, जो बिल्कुल भी खेती नहीं कर सकता था। उसकी चकित आंखों में केवल निराशा की धूसरता ही देखी जा सकती थी। यहाँ तक कि अपमान और आक्रोश भी निराशा में डूब गया था। हालांकि यह अंत वास्तव में उसके बुरे कृत्यों का प्रायश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसके लिए इससे अधिक क्रूर सजा बिल्कुल नहीं थी। वो चेंगियान की पुतलियां कई बार सिकुड़ी। नन्ही जैस्मीन ने चिढ़कर अपने हाथों को थपथपाते हुए कहा, अब तुम्हें पता चल गया कि कौन शक्तिशाली है ना? बाद में उसने अपनी निगाहें वू गुइके और वू चेंगियान की ओर घुमाई। वह मुस्कुराई और बोली, मैं आपको बता दूं, ये बुरे लोग एक बार मुझे धमकाना चाहते थे। सौभाग्य से बिग ब्रदर लिंग यून ने मुझे बचा लिया। आप लोग मुझे बताएं, क्या लिंग यून एक परोपकारी नहीं है जिसने मेरी जान बचाई? उसने तुम्हें बचाया। वो गुइके केवल खुद को सख्त कर सका और उसने अपना दिमाग खोला और कुछ शब्द कहे, हाँ बिल्कुल, मैं जानता था। छोटी जैस्मीन ने खुशी से सिर हिलाया। इन बुरे लोगों ने न केवल मुझे परेशान किया, बल्कि मेरे जीवन के रक्षक को भी धमकाना चाहते थे। इस प्रकार मेरे पास उन्हें पंगु बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह मेरी रक्षा के लिए था और अपने उपकारक का बदला चुकाने के लिए भी था। बहुत खूब, मेरे कार्य बहुत सही है। इंतजार। सहसा याद आया, तुम दोनों भी उनके साथ आए थे। अगर मुझे ठीक से याद है तो मुझे बिग ब्रदर लिंग यून की खोज करनी थी। क्या मुझे ठीक से याद है? लेई कियानफेंग और बाकियों के परिणाम ठीक उनके सामने थे जब उनका सामना लिटिल जैस्मीन से हुआ, जिसके चेहरे पर बेहद प्यारी और मनमोहक अभिव्यक्ति थी। वो गुइके को डर महसूस हुआ और उसके शरीर पर बाल उगाए और उसने झट से उत्तर दिया, नहीं नहीं नहीं। उन्होंने महामहिम को अपमानित करने का साहस किया। वे मरने के लायक हैं। जहां तक लिंग यून की बात है, हम दोनों ने पहले कभी यह नाम नहीं सुना है। हम आज डाकिया क्षेत्र छोड़ने वाले थे। हमारे जाने के बाद हम गारंटी देते हैं कि हम इस नाम के बारे में भूल जाएंगे और फिर कभी इसके बारे में नहीं सोचेंगे। जैसी कि दिव्य मार्शल क्षेत्र राजा के बेटे से अपेक्षा की जाती थी, वह चतुर था।
नन्ही जैस्मीन ने सिर हिलाते हुए उत्साहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, ओह तो यह इस तरह है। हे ठीक है, मैंने पहले ही वह कर लिया है जो करने की आवश्यकता थी। मैं अब और बाद में तुम दोनों के साथ नहीं खेलूंगा। लड़की को पलटते देख वू गुइके को लगा कि उसका शरीर अचानक बहुत शिथिल हो गया है और उसने जल्दी से सलाम किया। उसने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की, कहीं ऐसा न हो कि वह किसी तरह फिर से इस छोटी राक्षस लड़की का ध्यान आकर्षित कर ले। हालांकि छोटी जैस्मीन ने केवल 2 या 3 कदम ही उठाए थे कि वह अचानक रुक गई। एक नाजुक उंगली बाहर निकालते हुए उसने ऊपर की ओर देखते हुए अवचेतन रूप से अपने होंठ को छू लिया। उसके चेहरे पर गहरी सोच में खोए हुए व्यक्ति की अभिव्यक्ति दिखाई दी जब उसने धीरे धीरे विचार के कुछ खंडित वाक्यांश बोले। ऐसा लगता है कि उनके पास अभी भी बहुत सारे लोग हैं और वह एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। क्या होगा अगर, हाँ, लेकिन फिर मैं यूं ही लोगों को नहीं मार सकता, नहीं तो बड़ी बहन मुझे जरूर डांटेगी। मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझ गया। उसकी आंखें चमक उठी जैसे नन्ही जैस्मीन अचानक ऊपर की ओर तैरने लगी और उसने अपनी बाहें बाहर निकाल ली। बड़ी मात्रा में गहन ऊर्जा चुपचाप बाहर निकली और उसके आसपास की हर चीज तुरंत बह गई। वू गुइके ने चीख निकाली क्योंकि वह भी तेज हवाओं के कारण दसियों मीटर उड़ गया, जब तक कि वू चेंगियान ने उसे पकड़ नहीं लिया। तभी वू गुइके की अभिव्यक्ति थोड़ी बेहतर हो गई। जैसे ही छोटी जैस्मीन की बाहें हिली, सोल सेक्ट से सैकड़ों मीटर ऊपर आकाश में एक चमकदार नीला सितारा उभर आया। तारा तेजी से बड़ा और बड़ा होता गया क्योंकि उससे निकलने वाली नीली रोशनी ने धीरे धीरे पूरे संप्रदाय को घेर लिया। कुछ समय बाद तारा खंडित हो गया, छोटे तारों के पूरे आकाश में बदल गया जिसने एक विशाल सरणी का निर्माण किया। इस घिरे हुए स्थान में सारी गहन ऊर्जा आकाश में खींची जा रही थी, जहां ये तारों की श्रृंखला के केंद्र में बेतहाशा बढ़ रही थी। यहाँ तक कि सैकड़ों मीटर दूर से भी कोई सोल संप्रदाय से आ रही दुखद चीखें सुन सकता था। आज वू गुइके और अन्य लोगों के आगमन का स्वागत करने के लिए न केवल संप्रदाय के शिष्य बल्कि इसके उच्च स्तर के नेता और प्रमुख भी शामिल हुए। विभाजन सभी को एक साथ समूहीकृत किया गया था। इसमें 80 मिलियन से अधिक लोग थे, जिसमें संप्रदाय का लगभग हर एक प्रमुख सदस्य शामिल था। नन्ही जैस्मिन की आंखें नीली रोशनी में ढंकी हुई थी और उसके छोटे से चेहरे पर उसका बचपना कुछ भी खो गया था। वह शांति और गंभीरता से भरी थी, मानो वह एक दिव्य युवती हो जो नश्वर संसार को देख रही हो। जैसे ही तारा समूह प्रसारित हुआ, सभी आत्मा संप्रदाय के सदस्यों की गहन ऊर्जा निम्नतम शिष्यों से लेकर इसके दिव्य आत्मा क्षेत्र के बुजुर्गों तक बलपूर्वक बाहर खींच ली गई जब तक कि यह पूरी तरह समाप्त नहीं हो गई। पास में वू चेंगियान ने वू गुइके की रक्षा करने के लिए अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग किया क्योंकि वह रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए आकाश में लड़की को देख रहा था। जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखें कांपना बंद करने में पूरी तरह असमर्थ थी। दिव्य गुरु शक्ति। वह सदमे में अपने आप से बुदबुदाया। कुछ क्षण बाद उसका पूरा शरीर सिकुड़ गया क्योंकि उसके शरीर में प्रवेश करने वाली सारी ऊर्जा ठंड में बदल गई जिसने उसकी आत्मा पर वार किया। उन्होंने बिना आवाज के कहा, द स्टार फॉल रेमनेंट लाइट फॉर्मेशन। वो चेंगियान ने अपने दांत पीस लिए क्योंकि उसने उन शब्दों को जबरदस्ती रोक दिया जो वह कहने वाला था। वह अब बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके दिमाग में एक भयानक नाम उभर आया था, जिससे उसका चेहरा और शरीर सदमे से पीला पड़ गया था। इस समय उसे अंततः समझ में आया कि वू गुइके ने अपनी हैसियत के साथ इस लड़की के प्रति इतनी विनम्रता से क्यों व्यवहार किया और तब भी जबरदस्ती मुस्कुराया जब उसके साथ खून थूकने की हद तक दुर्व्यवहार किया गया था। फसल सोल संप्रदाय के मुख्य संप्रदाय के ऊपर गहन ऊर्जा की अनगिनत धाराएं ऊपर की ओर बढ़ी, गहन ऊर्जा की एक बड़ी धारा में बदल गई। सभी धीरे धीरे तारा निर्माण में प्रवेश कर गई जब तक कि कुछ और नहीं बचा। टकराना। छोटी जैस्मीन की पुतलियों से रोशनी चमकी और तारे का निर्माण टूट गया। हालांकि जैसे ही यह टूटा, इसके टुकड़ों के बारे में कोई गहरी ऊर्जा नहीं मिली। यह ऐसा था मानो संपूर्ण तारा निर्माण पूरी तरह से नष्ट हो गया हो। तारा निर्माण धीरे धीरे शून्य में विलीन हो गया, मानो किसी अज्ञात शून्य में प्रवेश कर रहा हो। सोल संप्रदाय के सभी सदस्यों की गहन शक्ति पूरी तरह से सूख गई थी और यह एक अप्राप्य स्थिति थी। कोई भी इससे बच नहीं सका। उसके बाल धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर आ गए और उसकी आंखों की रोशनी हल्के नीले रंग की हो गई। उसने दूर की ओर देखा और हंसी, यह अच्छा है। हे, मैं सचमुच बहुत होशियार हूँ। खेलने का समय आ गया है। हाँ। वह घूमी और उसकी रंगीन आकृति को उछलते कूदते देखा जा सकता था और वह दृश्य को ऐसे छोड़ रही थी मानो उसने अभी अभी कुछ बहुत ही सामान्य और साधारण काम किया हो। बहुत दूर वू चेंगियान को अपना संयम वापस पाने में काफी समय लग गया था।
पीछे वो गुइके था जिसका शरीर डर के कारण जेली जैसा हो गया था। वह अतुलनीय भयावह दमन कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह सहन कर सके। युवा मास्टर, वह है। लड़की की उम्र, विशेषताएं, वह रंगीन पोशाक और पहले प्रदर्शित स्टारफॉल अवशेष प्रकाश संरचना। उसे इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। उसे वह भयानक नाम याद आया जो उसकी यादों में उभर आया था। उसकी आत्मा में सदमे की लहरें दौड़ रही थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वो गुइके ने वू चेंग्यान का समर्थन किया और खड़ा हो गया। उसके दोनों पैर आखिरकार उसके नियंत्रण में आ गए। उसने आगे देखा और लेई कियानफेक के भयभीत समूह को देखा। उसने धीरे धीरे बुरे शब्द बुदबुदाए, उन्हें चुप कराओ। वू चेंग्यान ने अपना हाथ उठाया, गहरा प्रकाश जारी हुआ और पलक झपकते ही लेई कियानफेंग और गिरोह सहित पूरे समूह को अपने शरीर में एक कपकपी दौड़ती हुई महसूस हुई। ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें कोई प्रत्यक्ष चोट लगी है, लेकिन अब उनकी जान जा चुकी है। वू चेंग्यान एक दैवीय संप्रभु था। उन्हें मारना उतना ही आसान था जितना कि उसके हाथ पर हाथ फेरना, और अब तो और भी आसान था जब उनकी गहन शक्तियां पनगु हो गई थी। छोटी जैस्मीन बहुत दूर नहीं गई और उसने महसूस किया कि वू चेंग्यान और वू गुइके की आभा गायब हो गई है, जैसे कि उनमें अब और रुकने भागने की हिम्मत नहीं थी। छोटी जैस्मीन ने अपनी दोनों भौहें ऊपर उठाई। उसके छोटे हाथों ने गहरे इमेजरी स्टोन के 2 टुकड़ों को पकड़ रखा था। उसके होंठ बगल की ओर खींचे हुए थे, जिससे एक कुटिल मुस्कान दिखाई दे रही थी। ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड। हालांकि उसने ज्यादा आशा नहीं रखी थी, युनचे पूरी तरह से स्पष्ट था कि उसकी वर्तमान ताकत बहुत कमजोर थी और उसके पास भरोसा करने के लिए कोई मजबूत समर्थन नहीं था। प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन से पहले 9 स्टार दिव्य बुद्ध जेड और अमर सम्राट ग्रास को ढूंढना एक असंभव उपलब्धि होने वाली थी। तुलनात्मक रूप से 2 साल की इस समय अवधि के भीतर प्रशिक्षण और दिव्य क्लेश क्षेत्र तक पहुंचने की उम्मीद, हालांकि उम्मीदें धुंधली थी, यह उनके लिए एकमात्र विकल्प बचा था। जी रुयान ने उनके लिए एक प्रशिक्षण कक्ष की व्यवस्था की थी जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग था। यह अतुलनीय रूप से शांत था। यहाँ अंदर वो पूरे मन से शांति से प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। हालांकि थोड़ी देर बाद, अनगिनत बार अपनी आंखें बंद करने और खोलने के बाद भी, वह खुद को शांत करने में असमर्थ था। जब वह मू बिंगयुन के पीछे ईश्वर क्षेत्र तक गया तो उसका केवल एक ही उद्देश्य था, और वह था जैस्मीन को फिर से देखना। म्यूज जुवानिन, गहन मार्ग की उनकी दूसरी शिक्षिका, वह बादलों के ऊपर खड़ी एक बर्फीली देवी थी। फिर भी उन्होंने उनकी रक्षा के लिए तरीकों और साधनों का इस्तेमाल किया था जो निचले क्षेत्र से थे। उसका हृदय अनंत कृतज्ञता से भर गया था, और साथ ही वह उस उपकार का बदला भी नहीं चुका सका जो उसने उस पर किया था। इसके बजाय वह केवल दयनीय रूप से बच सका। उसने उसे दूसरी बार देखने की हिम्मत नहीं की, न जाने क्या परिणाम होंगे। हालांकि हर बार जब वह उसकी आवाज और चेहरे के बारे में सोचता था तो उसे चिंता होती थी कि वह अभी भी स्पष्ट नहीं हुई है और उसकी चोटें ठीक नहीं हुई है। और हे लिन जो उसकी बाहों में मर गया था। उनकी दोस्ती स्पष्ट रूप से अल्पकालिक थी, लेकिन उसकी मृत्यु, अंत में वे आंसू, उसके शब्द और वह चिंता, यह उसकी अंतरात्मा पर एक भारी बोझ की तरह था। वह जैस्मीन की तलाश करना चाहता था, हे लिन की बहन की तलाश करना चाहता था, और यहाँ तक कि माफी मांगने और म्यूज जुआनेन तक पहुँचने का रास्ता ढूंढने के लिए स्नो सॉन्ग क्षेत्र से गुजरने के अनगिनत विचार भी थे। उसने एक गहरी सांस छोड़ी। युन चे ने अपनी आंखें खोली और ऊपर देखा। वह एक दिन के लिए शांति में था, फिर भी उसकी आंखों में अभी भी अशांति के भाव थे। वह पूरी तरह से अचंभित लग रहा था। जैस्मीन, मैं कैसे? सरलिंग, यून, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बाहर से एक मृदु और कोमल आवाज अंदर आई। युन चे ने खड़े होकर दरवाजा खोला। उसने जी रुयान को वहां खड़ा देखा, उत्साह से लाल और अविश्वसनीय रूप से उत्साहित दिख रहा था। उसने उत्सुकता से पूछा, मिस रुयान, क्या हुआ? द सोल सेक्ट। जी रुयान थोड़ा हाँफ रहा था। द सोल सेक्ट पूरी तरह से खत्म। उद्धरण चिन्ह ... प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युन चे ने भौहें चढ़ाई। आप क्या कह रहे हैं? सोल संप्रदाय का क्या हुआ? जी रुयान ने धीरे से कुछ सांसें ली और फिर शांत हो गई। हमें अभी अभी सोल संप्रदाय की मुख्य शाखा से समाचार मिला है। कुछ अविश्वसनीय रूप से अजीब हुआ। एक बड़ी नीली रोशनी ने पूरे सोल संप्रदाय को ढक लिया, और फिर उसके बाद सोल संप्रदाय के भीतर, शिष्यों से लेकर बुजुर्गों तक, 10 सांसों के भीतर उनकी गहन शक्तियां पनगु हो गई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युन चे की भौहें उछल गईं। उन्होंने जी रुयान की अभिव्यक्ति और आवाज के माध्यम से पुष्टि की कि यह सच है। ये कैसे हो सकता है? जी रुयान ने आगे कहा, पहले मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन पिता और मैं इसे सत्यापित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से गए।
यह 100 है, नहीं 1000% सच। मेरे पिता ने ब्लैक सोल माउंटेन के सामने लेइक यानफेक की लाश भी खोजी थी। उद्धरण चिन्ह ... तो फिर दिव्य मार्शल क्षेत्र के लोगों के बारे में क्या? युनचे की भौहें चढ़ गई। वह अभी भी इस समाचार पर कार्रवाई करने में असमर्थ है। मुख्य संप्रदाय में 8 मिलियन से अधिक सदस्य थे। उन्होंने प्रवेश करने के लिए एक बार मून स्प्लिटिंग कैस्केड का उपयोग किया था। इसका आकार बहुत बड़ा था और विशेषज्ञों से भरा हुआ था। वे सभी डाकिया क्षेत्र के शीर्ष पर थे। भयावह बात यह थी, वास्तव में उन सभी की गहन शक्ति पनगु हो गई थी। ये बिल्कुल अविश्वसनीय और समझ से परे परीक्षा थी। दिव्य मार्शल क्षेत्र के सदस्य वहां नहीं थे। ऐसा लगता है मानो वे पहले ही जा चुके हो। इसके अलावा जी रुयान की आंखें चमक उठी। इस तरह की घटना होने पर एकमात्र संभावना यह है कि दिव्य मार्शल क्षेत्र के महान क्षेत्र के राजा ने रॉयल वुड स्पिरिट के मुद्दे पर अपने गुस्से के कारण सोल संप्रदाय के साथ ऐसा किया। वुड स्पिरिट्स के बारे में सर लिंग यून की समझ शायद अभी भी काफी सही है। हालांकि डिवाइन मार्शल रियलम, ग्रेट रियलम किंग जैसे अस्तित्वों के लिए उनका उपयोग बेहद फायदेमंद है। ये जानते हुए कि सोल संप्रदाय एक रॉयल वुड स्पिरिट को पकड़ने में कामयाब रहा, उसे खुशी से पागल कर देगा, लेकिन रॉयल वुड स्पिरिट को खोने से वह गुस्से से पागल हो जाएगा और यह किसी भी तरह का सामान्य गुस्सा नहीं होगा। ये बात यूचे को अजीब नहीं लगी। उस दिन वुड स्पिरिट गुप्त क्षेत्र के भीतर किंग म्यू, जिसने अपनी पत्नी का वुड स्पिरिट और उसे दिया था, ने व्यक्तिगत रूप से कहा था कि रॉयल वुड स्पिरिट्स, विशेष रूप से हेलेन के माता पिता के नरसंहार के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, पूर्वी दिव्य के भीतर सबसे बड़ा अस्तित्व था। क्षेत्र ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र, यहाँ तक कि राजा क्षेत्र भी ऐसे ही थे। दिव्य मार्शल क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दे। हेलेन का रॉयल वुड स्पिरिट और प्राप्त करने के बाद अब वह किसी अन्य की तुलना में अधिक स्पष्ट था कि वे इतने प्रतिष्ठित क्यों थे। यद्यपि दिव्य मार्शल क्षेत्र और आत्मा संप्रदाय विवाह से संबंधित हैं, ये केवल सतह पर है। वे निश्चित रूप से आत्मा संप्रदाय को कोई मूल्यवान चीज भी नहीं मानते हैं। अपने क्रोध में दिव्य मार्शल क्षेत्र राजा संपूर्ण आत्मा संप्रदाय को भी मिटा सकता था। इतने कम समय में इतने सारे लोगों की गहन शक्ति को पनगु बनाने में सक्षम होना। यदि ये दैवीय मार्शल क्षेत्र है, तो वे निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं, और यही एकमात्र संभावना है। जब वह ये सब बता रही थी, तो उसका आचरण, जो कुछ हद तक शांत हो गया था, फिर से उत्तेजित होने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह केवल सोल संप्रदाय के विनाश के बारे में नहीं था। ये हजारों वर्षों से ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड को सोल संप्रदाय के अंगूठे के नीचे दबाया जा रहा था, जो भागने में असमर्थ था। गहरी और गहरी खाई में गिरते हुए आखिरकार उन्हें सूरज की रोशनी की एक किरण दिखाई दी। ये सिर्फ उत्सव का कारण नहीं था, ये सचमुच पुनर्जन्म का मौका था जो स्वर्ग ने उन्हें दिया था। सर लिंग यून, आत्मा संप्रदाय दैवीय मार्शल क्षेत्र से इतनी कठोर सजा भुगत रहा है और अभी विनाश के कगार पर है। ये सब आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद है। जी रुयान ने अपना सिर उठाया और उसकी निगाहों में गहरी कृतज्ञता झलकी। यदि आपने उनके हाथों से उस छोटी सी लकड़ी की आत्मा को नहीं छीना होता, तो आज हम ऐसा नहीं कर पाते। हमारा ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड भी उनके चंगुल से बच नहीं पाया होगा। रुयान और संपूर्ण ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड आपके द्वारा हमें दी गई इस महान कृपा को हमेशा याद रखेगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूचे की अभिव्यक्ति कड़ी हो गई। जी रुयान की बात की प्रतिक्रिया पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ देर बाद वह मन ही मन बुदबुदाने लगा। एक ही बार में 8 मिलियन से अधिक लोगों की गहन शक्ति को नष्ट कर दिया। इसके अलावा उनमें से अधिकांश दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। कठिनाई, ऊर्जा की मात्रा का विस्तार, उन्हें सीधे तौर पर मारने से कहीं अधिक होना चाहिए। इस तरह से काम करने से कई खामियां छूट जाती हैं। चूंकि वह इतने गुस्से में था, तो क्यों न उन सभी को मार डाला जाए। उनकी गहन साधनाओं को बर्बाद करने के लिए इतना प्रयास क्यों करे। जी रुयान ने उत्तर दिया, शायद दिव्य मार्शल क्षेत्र बहुत अधिक चरम नहीं होना चाहता था। आखिरकार लेइक यानफेंग की बहन दिव्य मार्शल क्षेत्र राजा की उपपत्नी है। फिर लेइक यानफेंग को क्यों मारा गया? आपने पहले भी उल्लेख किया था कि दिव्य मार्शल क्षेत्र के 2 सदस्य आए थे, उनमें से एक वू गुई के भी था। ये कैसे संभव है कि दिव्य मार्शल क्षेत्र अंततः लेइक यानफेंग को मारने का फैसला करेगा? यह जी रुयान के पास इसके लिए कोई अच्छा स्पष्टीकरण नहीं था। हालांकि यह तर्क को अस्वीकार करता है, परिणाम ऐसा है। एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो ऐसा कर सकता है वह है दिव्य मार्शल क्षेत्र। वो गुइके का अनुरक्षण एक दिव्य संप्रभु होना चाहिए था। एक विशेषज्ञ का ये पद संप्रदाय के बाकी सदस्यों को मारे बिना और उनकी खेती को पनगु बनाए बिना लेइक यानफेंग को मारने के लिए पर्याप्त से अधिक है। शायद उसका हमेशा से यही इरादा था। यूचे की लेइक यानफेंग के प्रति नफरत गहरी थी।
उसे एक मृत अंत में धकेलने के लिए उसने एक बड़ा प्रयास किया था और कई जीवन घातक जोखिम उठाए थे। हालांकि दिव्य मार्शल क्षेत्र के आगमन के कारण उसके प्रयास विफल हो गए थे। उसने इस परिणाम की कभी आशा न की होगी, परंतु इस समय उसे प्रसन्नता के स्थान पर और भी अधिक संदेह हो रहा था। फिलहाल सोल संप्रदाय में क्या स्थिति है? क्या वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं? यू चे ने अचानक पूछा। जी रुयान ने अपना सिर हिलाया। पिता ने जानबूझकर यह खबर फैलाई, हालांकि दैवीय मार्शल क्षेत्र के डर के कारण किसी ने भी पास जाने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि आत्मा संप्रदाय की विभिन्न शाखा संप्रदायों ने भी खुद को सील कर लिया है। वे सभी खतरे में हैं, कोई भी मुख्य संप्रदाय के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। क्या लेई खियानफे की लाश अभी भी वही है? हाँ, और यह बिल्कुल बरकरार है। जी रुयान को अचानक कुछ शंका महसूस हुई। सर लिंग यून, मुख्य संप्रदाय पुनर्तः समाप्त हो गया है। भले ही बड़ी संख्या में शाखा संप्रदाय हैं, आत्मा संप्रदाय द्वारा वर्षों से जमा की गई सभी नफरत और शत्रुता के साथ उन्हें एक मृत अंत में होना चाहिए। यह उनका उचित प्रतिशोध है। युन चे ने कहा, क्या ये दैवीय मार्शल क्षेत्र था जो जिम्मेदार था? यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं भी आप सोल संप्रदाय के खिलाफ जाने के लिए परेशान नहीं हो सकता, लेकिन एक बात निश्चित है, मैं लेई खियानफेन की लाश को ले जाना चाहता हूँ। जी रुयान चौंक गए और धीरे से उत्तर दिया, बेशक ये कोई समस्या नहीं है। मैं तुरंत पिता को एक संदेश भेजूंगा ताकि किसी को भी उस स्थान के करीब जाने से रोका जा सके जहां लेई खियानफेन की लाश है। ब्लैक सोल पर्वत श्रृंखला। सोल सेक्ट के पास इस वक्त पूरा माहौल वाकई पहले से अलग था। खतरे और दमन की भावना पूरी तरह से गायब हो गई थी। दरअसल माहौल में दुख और निराशा का माहौल था। एक बार संपूर्ण डाकिया क्षेत्र के अधिपति वे अब अशक्तों का घोंसला थे। स्वर्ग से नरक में गिरना निस्संदेह एक दुःस्वप्न था जिससे वे जाग नहीं सकते थे। डाकिया क्षेत्र में वर्षों के दौरान उन्होंने जो भी बुरे कर्म किए थे, उनके कारण उनका भविष्य निश्चित था। ब्लैक सोल डिवाइन संप्रदाय, जो कभी गौरवशाली और हमेशा शक्तिशाली था, अब बेवजह और पूरी तरह से समाप्त हो गया था। जी रुयान द्वारा दिए गए निर्देशांक के आधार पर यू चे ने तुरंत लेई खियानफेन के शरीर का पता लगा लिया। यहाँ की जमीन समतल नहीं थी, मानो कोई बवंडर उसमें बह गया हो। लेई खियानफे का शरीर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाला था। उनके अलावा सोल संप्रदाय के कई सदस्य भी थे। उनके पहनावे से सोल संप्रदाय में उनकी स्थिति निश्चित रूप से कम नहीं थी, लेकिन वे लेई खियानफे के समान थे, उनमें जीवन की एक सांस भी नहीं बची थी। युन चे उतरा और लेई खियानफे की ओर उदासीनता से देखा। डाकिया ग्रेट रियलम किंग, जिसने एक बार उसे लगभग एक मृत अंत में धकेल दिया था, अब ऐसा लग रहा था मानो वह शांतिपूर्ण मौत नहीं मरा हो। उसकी दोनों आंखें खुली हुई थी, मानो पश्चाताप से भरी हो। उसकी आंखों में कोई भय या भय नहीं झलक रहा था, बल्कि भीतर एक खालीपन था, जैसे कि जिस क्षण उसकी मृत्यु हुई उसे भारी मात्रा में निराशा महसूस हुई हो। उसके शरीर के मरने से पहले ही उसकी आत्मा जा चुकी थी। लेई खियानफे, अब समय आ गया है कि आप उन निर्दोष लकड़ी की आत्माओं का सामना करें और अपने अपराधों का हिसाब लें। यू चे गुर्राया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और हिंसक रूप से लेई खियानफेन की लाश को ऊपर उठाया। डिंग। जैसे ही उसने लेई खियानफेन के शरीर को उठाया और उड़ने ही वाला था, अचानक एक जेड पत्थर के जमीन पर गिरने की आवाज आई। युन चे ने नीचे देखा और एक बैंगनी आयामी अंगूठी देखी। ये लेई खियानफेन के शरीर से गिर गया था। जाहिर तौर पर यह उसका सामान था। वह डाकिया क्षेत्र का राजा था। उसकी आयामी अंगूठी में निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में गहरे पत्थर और दुर्लभ खजाने होंगे। यू चे ने अपना हाथ बढ़ाया और अंगूठी उसमें खींच ली। उसने इसे अपनी समझ से साफ किया और फिर चौंक कर रुक गया। यह अंगूठी जो लेई खियानफेन की थी, उसमें केवल 4 अलग अलग पत्थर थे। उनमें से 2 साधारण गहन कल्पना पत्थर थे। अन्य 2, एक ड्रैगन आई फल जितना छोटा था। इसने प्रकाश जैसा एक अजीब खजाना छोड़ा। बड़ा वाला भूरे सफेद रंग का था। यह एक बेहद साधारण पत्थर जैसा दिखता था। यू चे ने चतुराई से इन 4 पत्थरों को बाहर निकाला। लेई खियानफे एक बेहद अमीर आदमी था, उसके भीतर केवल 4 पत्थर ही क्यों होंगे? उसने सबसे पहले उस भूरे सफेद पत्थर को उठाया। युन चे ने कुछ गहन ऊर्जा डाली और इसका निरीक्षण करने की कोशिश की, लेकिन उसकी गहन ऊर्जा तुरंत कट गई और वह आगे और जांच करने में असमर्थ हो गया। युन चे की भौहें आश्चर्य से उछल गईं। ये साधारण दिखने वाली चट्टान निश्चित रूप से कुछ असाधारण थी। हालांकि वह गहरी ऊर्जा के साथ इसकी जांच करने में असमर्थ थे। जी रुयान को पता होना चाहिए कि यह क्या था। उसने इसे दूर रख दिया। युन चे ने फिर चमकता हुआ जेड पत्थर उठाया। इसकी चमक तेज नहीं थी, ये शांतिपूर्ण और आरामदायक थी।
जब उसने इसे देखा तो अनायास ही उसे अंधेरी रात के आकाश में चमकते खूबसूरत सितारों की याद आ गई। उन्होंने इसमें कुछ गहरी ऊर्जा डाली और उनके दिमाग में एक नाम उभरकर सामने आया। युनचे का हाथ कांपने लगा और वह चिल्लाया, डिवाइन 9 स्टार बुद्धा ज़ैड।